उनकी पहली बरसी है अभी 7 जून को। पर्सनल होगा थोड़ा सा। मेरे फादर थे वो। और ये प्लेटफॉर्म मिला सर उनके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से हम बोल नहीं पाए, कॉलेज में भी कुछ प्रोग्राम नहीं ले पाए। लेकिन थैंक यू सो मच सर, हम इस बहाने नमस्ते आपके हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे कॉलेज की तरफ से तारनाकल सर को विनम्र आदरांजलि श्रद्धांजलि ये करते हैं। और वो ये सब बड़े बड़े लोग थे, उनकी लेगेसी हम चला रहे हैं। बच्चों के लिए हम प्रोग्राम्स रखते थे, एक्टिविटीज चालू रहती थी, लेकिन पेंडेमिक की वजह से अभी सिर्फ ऑनलाइन ये करना पड़ रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज रहते थे, म्यूजियम विजिट करना, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना, और बाकी हिस्ट्री फेस्ट करके थे, उसमें कुछ एक्टिविटीज बच्चों के लिए रहती थी। तो और इसमें बहुत बड़ा हाँ ये मेरे जो कलीग है प्रमिला दस्तरे मैडम, वो बहुत ही हमको सहकार्य करते हैं। ये एक्चुअली ये प्रोग्राम भी उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं थैंक्स बोलूंगी उनको। और सर आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके अनमोल विचार और गाइडेंस हमें चाहिए। उसके पहले हमारे मैडम आपका इंट्रोडक्शन करेंगे बच्चों के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, madam. Friends, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, before we proceed with our program, I would firstly, ma'am, thank you so much for all your support and guidance always. And it is a very big thing. आज हमारे लिए हमारे साथ डॉक्टर बोबड़े हैं, तो उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए दिया है, एंड आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर यू स्टूडेंट्स, टू नो व्हाट ऑल इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। सर की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में अभी मैं 1 मिनट में बताऊंगी। बहुत सारी चीजें वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड बेसिकली एक ऐसा समय है जहाँ पे प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो लोगों को लगता है कि साइंस फैकल्टी की ही दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट टू डू विथ ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो एक ऐसा फील्ड है जो साइंस वाले भी, कॉर्पोरेट्स भी, एंड अभी अवेयरनेस जनरेट हो रही है कि ये इट इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, हिस्ट्री, हेरिटेज and all this. So in that context, this is a very important session that we have, and whoever has joined here, I'm sure आप लोग सब बहुत इसका बेनिफिट करेंगे। बट बिफोर आई गो ऑन टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर बोबड़े, आई लाइक टू जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन, वी विल कीप 1 मिनट्स 1 मिनट का मौन व्रत रखेंगे फॉर ऑल दोज पीपल who have passed away because of this pandemic, and we will also pay a little homage to our former principal and head of the department, principal Professor S.B. Tardalkar sir. So 1 मिनट का मौन व्रत के बाद हम लोग वापस शुरू करेंगे। All right, thank you very much. I will now introduce our speaker for this morning, uh, Professor Dr. Bhujang Bobre sir. Sir is a museum expert and director of the Heritage Foundation, Jalgaon. Sir has an professional experience of past 13 years working as the director of Deccan Archaeological and Cultural Research Institute, Hyderabad. Sir also has an 8.5 years of experience of working as a museum curator at Gandhi Research Foundation, the International Museum at Jalgaon. Sir was also coordinator of the Khandesh Archives and Museum Gandhi Research Center, Northern Maharashtra University, Jalgaon. He is also a research scholar, surveyor of the Andhra Pradesh government's Oriental Manuscript Library. These are all very prestigious things that Sir has worked upon. He was also a senior lecturer at the Shivaji College at Udgir. Very importantly, Sir was deputed as a curatorial associate for international exhibition on Gandhi Going Global at New Jersey in United States of America. And this is a very fantastic deputation, sir. We would like to know also more about this.
Sir has been associated with 12 museums, 3 government committees. He is member of 3 government committees as well as the Board of Studies committee member. Sir has written a number of books and encyclopedias, published over 65 papers, and presented at various conferences and workshops. He has given various invitational talks, which is over 1,000, and he's also given television and radio programs. So this is a very wonderful time that we have managed to get such a reputed speaker with us. And sir, मैं अभी सबके तरफ से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आपकी सेशन स्टार्ट कीजिए. Thank you so much for being here, sir. Yes, thank you, thanks a lot. मैं पहले तो आपका ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया, और मैं यहाँ पर सबसे पहले मेरे गुरु डॉक्टर ईश्वर नागिरेड्डी सर जो यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है, मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ, और वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ है, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है. मैं उसके साथ में हमारे जो सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर है, जो जानना चाहते हैं कि हमारे इस गौरवशाली भारत का इतिहास क्या है, व्हाट्स एन हेरिटेज, नॉट ओनली द हिस्ट्री बट द हेरिटेज, सो इट्स अ लीगेसी. तो आपने बड़ा अच्छा कहा कि 89 इयर्स का आपका डिपार्टमेंट है, तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए 89 इयर्स हुए, ये बड़ी खुशी की बात है. सुन यू विल कंप्लीट 100 इयर्स, आपका सेंचुरी पूरा हो जाएगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मौका है. यस, तो ये मौका है आपके लिए कि एक बेहतर दिशा में हम आगे बढ़े. So dear friends, this heritage of India, heritage means not only history, please remember these things. या हमारा जो भी जिसे हम हेरिटेज को मराठी में वारसा ये शब्द यूज करते हैं, तो हेरिटेज क्या है ये समझते समय हमें ये देखना है कि आज की तारीख में, प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे लिए हेरिटेज सभी फॉर्म में हम देख सकते हैं, इंक्लूडिंग मी, द सोसाइटी, माय फैमिली एंड द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट एंड दिस डिजिटल वर्ल्ड, दिस कल्चरल वर्ल्ड, एवरीथिंग एंड द नॉलेज एंड साइंस. इट्स अ हब, इट्स वी कैन से इट्स अ कॉम्बिनेशन. सो व्हाट्स एन हेरिटेज, एक सिर्फ कोई ऐतिहासिक इमारत जो है, कोई मॉन्यूमेंट जो है, सिर्फ उतना ही हेरिटेज नहीं है, उसके साथ में हमें नेचुरल एनवायरनमेंट देखना है, आर्टिफैक्ट्स को देखना है. जब हम हेरिटेज को डिवाइड करते हैं, उसको सेग्रीगेट करके देखना चाहते हैं, तो कल्चरल हेरिटेज में हम टैंजिबल हेरिटेज और इनटैंजिबल हेरिटेज, ये 2 प्रकार उसमें देखते हैं. अब टैंजिबल हेरिटेज माने तो क्या है, कई बार ऐसा होता है ये वर्ड भी हमें कोई नहीं बताता है. टैंजिबल हेरिटेज वो होता है कि जिसमें आप ये मंदिर, मूर्ति या जो भी मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, उसके साथ साथ ऐसी चीजें जो बुक्स, पेंटिंग्स, पॉटरीज वगैरह, आर्टिफैक्ट जिसको हम कहते हैं. उसके बाद इंटेंजिबल हेरिटेज, जिसमें हमारा जो ट्रेडिशंस है, लोकल ट्रेडिशंस है, म्यूजिक है, डांस है, क्राफ्ट्स है, रिलीजियस सेरेमनीज है, लैंग्वेज, थिएटर, लिटरेचर, ऐसी कितनी तो भी बातें हमारे हेरिटेज में हमें इंक्लूड करनी होती है. जैसे हमारी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम है, उसी की तरह ICOM जो यूनेस्को के तहत काम करती है, उन्होंने भी ये बताया है, इट स्टार्ट फ्रॉम यू टू वर्ल्ड. इसका मतलब क्या है, व्यक्ति से लेकर समष्टि, यानी समष्टि से सृष्टि तक लेकर ये जो है बात है. सो जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, मराठी में हमारे लिए बड़ा सुंदर ये है. सो इस तरह से हमें हेरिटेज को देखना है ताकि हम उसको सही तरह से समझ सके. सो आज ये पर्यावरण दिन है, तो नेचुरल हिस्ट्री जो है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे. सो नाउ वी विल कम टुवर्ड दिस वंडर ऑफ हेरिटेज. क्या है, अभी हम सब लोग, आप सभी को ये जुरासिक पार्क पसंद है? कितने बच्चों ने या कितने हमारे यहाँ की यूथ है कि जिन्होंने जुरासिक पार्क देखा है? 1 मिनट में साउंड ऑन करके बताइए, जुरासिक पार्क कितने लोगों ने देखा है? साउंड ऑन करके बताइए. हाँ, मैंने देखा है. How many of you? मैंने देखा है. Yes, ma'am. आपने देखा है. ओके. हैंड रेज कर सकते हैं आप, अगर बात नहीं करना चाहते. वहां पे आपके सामने एक हाथ का दृश्य है, उसको क्लिक करके बता सकते हैं. इसका मतलब काफी सारे लोगों ने ये देखा है. सो ये खुशी की बात है. मगर क्या आप ये जानते हैं कि ये जुरासिक पार्क 1990 में बना, तैयार हुआ ये फिल्म, उसके 20 साल पहले हमारे भारत में भी मध्य प्रदेश का ये गुगरवा पार्क जो हम देख रहे हैं, गुगरवा फॉसिल पार्क, या फिर अदर जगह पर
6 करोड़ से लेकर के 7-8 करोड़ साल तक के पुराने डायनासोर के अंडे हमारे यहाँ पर भी मिले थे। यक्ष जो है हमारे भारत में भी मिले थे। जब हमें ये पता नहीं था कि ये डायनासोर इसे कहा जाता है, उस समय हमारे यहाँ पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने फाइंड आउट किया, यहाँ पर आप वो चित्र देख रहे हैं, और इस तरह से जो हमारे यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए 125 डायनासोर के अंडे हमारे यहाँ पर मिले थे। अगर हम नर्मदा के किनारे धार, कुक्षी, मांडव, बाग, मनवार, ऐसे कई जगह, और अब ये आप यहाँ सामने दृश्य देख रहे हैं, ये जो हमने फिल्मों में ये दृश्य देखा था शायद, तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि जो अंडे प्राप्त हुए थे, ये आपने राइट साइड वाला जो व्यू देख रहे हैं, ये गुजरात का व्यू है। और अभी दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा डायनासोर पार्क हमारे यहाँ पर गुजरात में बनने जा रहा है। सो हम इंटरेस्टिंगली कहते हैं ये जुरासिक पार्क, डायनासोर हमको पसंद है, बट इसके जो भी एग्स या जो भी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से जो हमें प्राप्त हुए, उसका अध्ययन करने के लिए सिर्फ इतिहास का ही नॉलेज होना आवश्यक नहीं होता है, उसके लिए आपको साइंस का नॉलेज भी होना है। Those who have the science background, if they want to study in this part, most welcome, वो भी इसमें आकर के अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं ये हॉलीवुड की फिल्मों में, बाहर के देशों के इसमें हम देखते हैं कि कई सारे साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट इसमें आकर के साथ में मिलकर काम करते हैं। देन व्हाई वी नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते? अगर आप बच्चे भी, पुणे में रहने वाले बच्चे या आजू बाजू के कहीं इसमें रहने वाले बच्चे, अगर आप भी इस तरह से सोचेंगे कि हम भी साथ में मिलकर इस तरह से कुछ करें, मोस्ट वेलकम। अभी देखिए कि व्याख्याएं, हमारी डेफिनेशंस कैसे बदल जाती है। हम नोमैडिक किसको कहते हैं कि ऐसे अश्मयुग में जो लोग अपना खुद का जो क्रॉप होता था, जिनको पता नहीं था कि किस तरह से हम अनाज को पैदा कर सकते हैं, वो पता नहीं था, तो हम उसको कहते थे नोमैडिक पीपल्स। अब मैं आपसे पूछता हूं, हम कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग, हम प्रोफेसर लोग, या जो भी हम जो खेती छोड़ करके बाकी काम करने वाले लोग, फिर हम लोग कौन है? तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए। अब ये देखिए कि हर तरह के टूल्स एंड इसको डेवलप करने के लिए, टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए हजारों सालों का समय लगता है, और इसके लिए आप सिर्फ हिस्ट्री बैकग्राउंड के हो ये कोई मायने नहीं रखता है। उसके लिए तो आपको टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स का नॉलेज होना है। केव्स अगर निर्माण करनी, गुफाओं का अगर निर्माण करना है, तो आपको डिफरेंट इसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना है। हमें जो है एक ब्रॉड व्यू के साथ वर्क करना है। तो यहाँ पर हम देखें कि अब तक हम भारत का इतिहास जो अध्ययन करते थे, आर्ट हिस्ट्री स्पेशली जब स्टडी करते थे, तो हम भीमबेटका से शुरुआत करते थे। 7-8 हजार 10 हजार साल पहले से हम भारत के इतिहास की ये शुरुआत करते थे, इसका हेरिटेज जो है स्टडी करते थे। बट नाउअडेज इन आवर महाराष्ट्र, इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, दिस पेट्रोग्लिफ, आप ये जो सामने पहाड़ पर या पत्थरों पर खुदाई करके या इस तरह से बनाए हुए जो चित्र देख रहे हैं, ये सैकड़ों की तादाद में इस तरह के चित्र मिले। और ये कब बनाए हुए हैं? ये लगभग 20,000 साल पुराने तक के यहाँ पर है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत में और भारत के बाहर के देशों में भी इस तरह के जो पेट्रोग्लिफ्स या पेंटिंग्स मिलते हैं, उसमें हम उस समय का जनजीवन अध्ययन कर सकते हैं। इंसान जो शिकार करके जीना जानता था, यानी जिसको खेती और ये करना पता नहीं था, जो सिर्फ जो है पशुओं का शिकार करके खाना जानता था। इससे हम क्या स्टडी कर सकते हैं? आप ये अगर सामने दृश्य देख रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा, हमारे यहाँ पर दुनिया के कई सारे अलग अलग देशों में इस तरह के कई सारे पेट्रोग्लिफ, सिंबल्स, पेंटिंग्स प्राप्त होते हैं। सो इट्स एन कल्चरल इंटर रिलेशन स्टडी। आप हमारे विभिन्न देशों के बीच में जो हमारा कल्चरल इंटर रिलेशन था, हमारा जो ट्रेड रूट्स थे, उसका हम इसके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। और इससे हम अपनी सांस्कृतिक नींव जो है उसको और मजबूत बना सकते हैं, इन रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। सो बी ब्रॉड, थोड़ा वाइड एंगल से सोचिए, और वैश्विक संस्कृति जिसको हम कहते हैं, उस तरह से आप सोचेंगे तो आपको ये अध्ययन करना ज्यादा अच्छा हो जाए। क्योंकि मैं अगर किसी पेट्रोग्लिफ का सिर्फ उतना रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के लेवल में अगर स्टडी करना चाहूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल टू मी। But for me, if I want to study it clearly, I must study it for these other petroglyph symbols which are in other countries too. So ये हमारा इस तरह का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है।
भीमबेटका की गुफाओं में जब हम अध्ययन करते हैं तो सिर्फ पेंटिंग्स का ही नहीं, इंसान अपना जीवन अच्छा हो इसके लिए जो है ये कुदरत के साथ अपनी जो टूल्स एंड टेक्निक्स थी उसको यूज करके इस तरह के कुछ विशाल सभागृह, इसे ऑडिटोरियम केव के नाम से जाना जाता है और ये लगभग 7-8 हजार साल पुराना ऐसा माना जाता है। तो आप इस तरह से जब 10,000 साल भी समवेयर इट्स मेंशन्ड BC 7,000 BC 8,000 लाइक दैट, तो 10,000 साल तक पुराना। तो इस तरह से वो क्यों बड़े इसमें रहना चाहता था? बिकॉज दे वांट टू लिव टुगेदर, एक साथ रहना चाहता था। इंसान जो है ये हमारे जो जंगली जानवर वगैरह जो थे उनसे बचने के लिए वो एक साथ रहना चाहता था। फैमिली के साथ साथ सोसाइटी का निर्माण इस तरह से होता गया। और आप यहाँ पर अगर ये चित्र देख रहे हैं तो जब एक साथ रहने लगेंगे तभी जाकर के हम साथ में कहीं पर जा सकते हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे लोग हैं, 5 6, तो इसका मतलब क्या है कि समूह के साथ रहने की इंसान की शुरुआत हो चुकी है और समूह के साथ मिलकर एक्टिविटीज करने की बात है। अब यहाँ पर आप देखें कि हम आजकल कहते हैं कि एक में का सहाय्य करू ओगे धुरु सुपंत, मराठी में बहुत अच्छी कहावत है। सो कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, हम एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको फायदा ही होगा। ऋषिकेश चौहान जी कृपया खुद का प्रेजेंटेशन बंद कीजिए। ऋषिकेश चौहान जी कृपया खुद को प्रेजेंट करना बंद कीजिए। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको रिमूव कर रहा हूं। बीच में इस तरह से कोई भी जो है अपना प्रेजेंटेशन ना करे ताकि सभी को डिस्टर्ब हो जाता है। फिर से एक बार मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे क्षमा कीजिए सभी लोग। सर आपको अगर कुछ डिस्टरबेंस आता है तो आप रिमूव कर दीजिए बेझिझक। जी जी, हाँ, यू कैन कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू यस सर। प्लीज, यस। ओ सॉरी, ओके, ये मेरी साउंड जो है वो म्यूट थी। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि इसके बाद इंसान जो है ये संस्कृतियां जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगी। नदियों के किनारे पर बसने वाले लोगों की संस्कृतियां डेवलप होने लगी। वाई? क्योंकि अब तक इंसान को ये पता ही नहीं था कि खेती कैसे करना है। वो तो पशुओं की शिकार करके खाना जानता था या कंदमूल फल जो है वो खाकर जीना जानता था। बट जैसे जैसे उसको पता हुआ कि खेती के लिए जो है वो सुपीक जमीन चाहिए यानी फर्टाइल लैंड चाहिए, फिर पानी चाहिए, तो उसके लिए धीरे धीरे और पॉपुलेशन जैसे बढ़ने लगा उस तरह से जो है ये हम जिसको नाम देते हैं इंडस, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, चाइनीज, तो इस तरह की संस्कृतियां जो है वो डेवलप होने लगी। अब यहाँ हम देखते हैं
फिर भी उस समय के इंसान ने, यानी अराउंड 5000 ईयर बैक, उसने जो भी नगरों का निर्माण किया या वो जो भी रहता था, उसने वेल प्लान्ड सिटीज बनाए, वेल प्लान्ड टाउनशिप जो था वो बहुत ही अच्छा प्लानिंग था। इसके कई सारे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ये चाहे शहर के रास्ते होने दीजिए, बिल्डिंग्स होने दीजिए, ड्रेनेज सिस्टम होने दीजिए, ये सभी बातें जो है बहुत अच्छी तरह से डेवलप की थी। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं ग्रेट बात का, जिसे विशाल स्नानागार के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरह से जो इंसान ने ये डेवलप किया है, हेरिटेज जो डेवलप किया, हमको उससे सीखना है कि आज हमारी जो टाउन्स में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारी नगर रचनाओं में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके सवालों के जवाब हम अपने हेरिटेज में कहीं पर ढूंढ सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना आवश्यक बात होती है। यहाँ पर आप जो है गोदी, जिसको हम कहते हैं जहाज वगैरह आकर के रुकने वाले, ये लोथल की बंदरगाह है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल रूप से उन्होंने जो बनाया था, इट्स एन एक्सलेंट प्लानिंग। सो क्या हम सिर्फ इंडस और इसकी बात करते रहेंगे? हमारे अपने रीजन में हम कब ढूंढेंगे? आप अगर पुणे में रहते हैं तो पुणे के आसपास में कितनी सारे रिचेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, इनामगांव, दाइमाबाद, जोरवे, कितनी शिऊर और वो सारा इलाका जो है। आप अगर प्रवरा वैली के इसमें घूमते हैं तो इतना रिचेस्ट कल्चर है। सो हमारे खानदेश में भी हमने इस तरह से ढूंढने का प्रयास किया और जब ढूंढा तो मिलता गया। तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का काम भी हमें करना है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ जो महिला है इनको पता नहीं है ये जहां पर वो आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर जो भी मिलता है वो अपने इसमें भर के, टोकरे में भर के अपने घर के सामने नाली में ले जाकर के डाल के उसके ऊपर से जो है फर्श बिछा देते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी ईंटें मिलती है सातवां पीरियड की वगैरह, वो ले जा करके उसे वहां पर डाल देते हैं और उसके ऊपर से आने जाने का रास्ता बना देते हैं। सो हम लोगों को ये प्रयास करना है कि हमारे आजू बाजू में इस तरह की साइट्स को हम ढूंढे, या अगर पहले किसी ने ढूंढा है, अगर वो नष्ट हो रही है तो गवर्नमेंट ही आकर के काम करेगी? नहीं, हम लोग मिलकर के काम करेंगे। इसके लिए ये जरूरी ही नहीं है कि मैं हिस्ट्री के बैकग्राउंड का ही रहूं, नो प्रॉब्लम, आप चाहे किसी भी फील्ड से रहिए, ये हमारे देश का, इट्स एन आवर नेशनल ट्रेजर। तो ये पूरी मानवता के लिए हेरिटेज है, तो इसको संभालने का प्रयास जो है हम मिलकर करेंगे। अब इस तरह से कई सारे न्यूज वगैरह जब पब्लिश होते हैं तब लोगों को पता चलता है, अरे अपने शहर का इतिहास भी इतना पुराना है, ये पता नहीं था। आप जब इस तरह से ढूंढेंगे, फिर किसी म्यूजियम में रखे जाएंगे, लोग उसका अध्ययन करेंगे, तो याद रखिए, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस हेरिटेज। सो प्लीज बी रिमेंबर दैट, बी अ पार्ट ऑफ हेरिटेज। आप हेरिटेज का पार्ट बनने का प्रयास कीजिए, आप जो ढूंढेंगे। और याद रखिए, इट्स नॉट माय पर्सनल वेल्थ, ये याद रखिए कभी भी, हमेशा ये हमारे राष्ट्र के लिए है, ये सभी आने वाली न्यू जनरेशन के स्टडी के लिए। सो किसी अच्छी जगह पर जहां भी आपको लगता है वहां पर इसको डोनेट कीजिए, दीजिए, वो लोग इसको अध्ययन करेंगे, उसको अच्छी तरह से डिस्प्ले कर पाएंगे और दुनिया के सामने इसको ले जाएंगे। सो इस तरह से कई सारे अवशेष आपको प्राप्त होते रहेंगे। ये हमारे यहाँ का इंडस वैली देखिए, कितना ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और ये बनाया जाता था उस समय में। आज हमारी लड़कियां और ये बनाते इस तरह से पेंटिंग्स और ये, मगर क्या हम उनको ये सस्टेनेबल जिसको हम कहेंगे, या हम जिसको कहेंगे लॉन्ग लाइफ जो अच्छी तरह से रह पाएगा, तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें पहले दिमाग में रखिए, जितने नेचुरल संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेस का आप यूज करेंगे, उतना वो ज्यादा लंबा समय तक वो हमें प्राप्त होगा, या फिर वो जो है रहेगा, अदरवाइज इंटैक्ट रूप में हमें मिलेगा, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय। तो ये हमें याद रखना है कि जितना भी नेचुरल, सो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल यूज करना है। सो इंडस स्क्रिप्ट्स हो, कभी पढ़ने का अगर प्रयास करेंगे तो हम जो है उस समय की भाषाएं और लिपियां पढ़ने का जरूर प्रयास करें। इस तरह से हमारे यहाँ पर हम कहते हैं जेम्स प्रिंसेप ने आकर के अध्ययन किया, या फिर बाद में कई सारे लोगों ने इस तरह का प्रयास किया, कनिंघम वगैरह। तो हम लोग भी अपनी इन भाषा और लिपियों को, एक हम कहते हैं ना, सिर्फ खजाना ढूंढने के लिए लिपियों को पढ़ना आवश्यक नहीं है। नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजर इन दिस वर्ल्ड। तो ज्ञान को पाने के लिए हमको ये भाषा और लिपियां आना जो है वो आवश्यक है, ये समझना है। हमारे वेदों में हो, या फिर हमारे उपनिषद हो, या फिर लिटरेरी सोर्सेज भी, वो भी उतने इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर दी हेरिटेज, ये सभी जो है हेरिटेज का ही पार्ट है। सो प्रयास करें। तो अब हम आगे आते हैं महाजनपद जिसको हम कहते हैं। सो उस समय में जब हम देखते हैं तो ये हेरिटेज को हम अलग अलग रूप में देखते हैं। उसमें भी आर्ट में जब देखते हैं तो कोर्ट आर्ट, जिसमें हम पैलेस, पिलर्स, स्तूपास, फिर पॉपुलर आर्ट्स में केव्स, पॉटरी, स्कल्पचर्स उसमें देखते हैं। जो इंसान
अपने शुरुआत में ये सातकर्णी केव्स वगैरह जो है बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कि रॉ फॉर्मेट जिसको हम कहेंगे, बिल्कुल अनडेवलप्ड ऐसा जिसको कहते हैं, तो धीरे धीरे जिसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। और ये आप देखते हैं लोमस ऋषि की गुफा वगैरह, तो इसके ऊपर का किया हुआ ये आर्च या उसके डिजाइन, ये स्टाइल, ये आर्किटेक्चर किस तरह से डेवलप हुआ। स्तूपों को अगर हम देखते हैं तो ये देखिए हमारे यहाँ का आंध्र प्रदेश का अमरावती का स्तूप, इतना एक्सलेंट वो वर्क किया गया है उधर। और इसका पुनर्निर्माण का काम जो है तो ये हमारे डॉक्टर ईश्वर नागिरेड्डी सर, मेरे गुरु, जो अभी इस सेशन में उपस्थित है, उन्होंने किया। और इस तरह से उन्होंने अभी तक 300 मंदिरों का जो इस तरह से हमारे ध्वस्त हुए हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर उसी तरह से यानी उसी पीरियड का टेक्निक्स यूज करके उन मंदिरों के पुनर्निर्माण का कार्य उन्होंने किया। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ मंदिर स्थपति अवार्ड उनको प्राप्त हुआ है। सो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे यहाँ की ये टेक्नोलॉजी कैसे धीरे धीरे डेवलप हुई। आप ये सांची का तोरण जो देख रहे हैं, जंगलों में रहने वाला एक इंसान इस तरह से धीरे धीरे अपने टूल्स को डेवलप करते, अपनी सोच को डेवलप करते, ब्यूटिफिकेशन, सुंदरता को निर्माण करने का प्रयास इंसान ने जो है अपने जीवन में लगातार किया। आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब इस सुंदरता में हम उस समय का जनजीवन कैसे देख सकते हैं। हमारा ट्रेड्स, हमारा व्यापार, बिजनेस जिसको हम कहते थे, सो नौकाओं का इस्तेमाल हो या फिर चाहे यहाँ पर जो रथ हम देख रहे हैं या फिर ये स्तूप और ये चैत्य का निर्माण, यहाँ हम ये पिलर के ऊपर का डिजाइन देख रहे हैं या आर्च के ऊपर का डिजाइन देख रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल निर्माण उसने किया। और ये करते करते जहाँ ये हमारा अजंता, हमारे बिल्कुल बाजू में जलगांव के, ये दुनिया की एक फेमस प्लेस जिसको हम कहते हैं, सांची भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अजंता भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसके बारे में हम कहते हैं जहां नगमे जन्म लेते हैं, रंगीनी बरसती है, दक्खन की गोद में आबाहा, ये ख्वाबों की बस्ती है, ये तस्वीरें बजार साकेत व खामोश रहती है, मगर अहले नजर पूछो तो दिल की बात कहती है। सो ये दिल की बात समझने का प्रयास कीजिए। कल हमारे के मोहम्मद साहब ने, उनका एक प्रेजेंटेशन था, बहुत सुंदर रूप से इस तरह से दिल की बात हमें कही। पत्थर भी जो है कुछ कहना चाहते हैं, उसकी आवाज सुनने का प्रयास करो। सो ये ख्वाबों की बस्ती है, ये अजंता वगैरह जब हम देखते हैं, इट्स नॉट ओनली द पेंटिंग्स हेरिटेज बट एवरीथिंग इज देयर। जैसे आप समझने का, चाहे वो शिल्प हो, स्थापत्य हो, कला हो, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी दुनिया है जितनी बार समझने का प्रयास करें हम कम है। 179 times till today I visited here, but till then I want to know more and more things because till I am a student of this all arts and architecture. ये पेंटिंग्स का जो आप हेरिटेज देख रहे हैं, पद्मपाणि बोधिसत्व त्रिभंगा कृति में, या फिर यहाँ पर वज्रपाणि जो आप देख रहे हैं, इसके किरीट को अगर आप नजदीक से देखेंगे तो उस समय की जो कलर्स एंड ये यूज किए, इट्स अ ब्यूटीफुल अजंता कंप्लीट। ये पूरी एक कहानी है, एक धरोहर है। सो ये देखिए, उसमें यूज किए हुए इस तरह के कई सारे पेंटिंग्स है। और ये इसके बारे में दो लोगों ने बहुत बड़ा ग्रेट वर्क किया। वन पर्सन इज हमारे यहाँ जो निजाम के इसमें आर्कियोलॉजी के जो हेड थे, डायरेक्टर थे, याजदानी, डॉक्टर याजदानी, और डॉक्टर वाटर स्पिंक जो थे, अमेरिका से जो आदमी यहाँ पर हमारे देश में आकर के अजंता में हर साल 1 महीना यहाँ रहता था, 50 साल तक निरंतर वो आकर के जो है 7 वॉल्यूम्स पब्लिश किए हैं। याजदानी जी ने 8 वॉल्यूम्स पब्लिश किए। और इस तरह का कार्य अजंता के बाजू में रहने वाले या हमारे महाराष्ट्र के या इसमें ऐसे किसी व्यक्ति ने इतना बड़ा वर्क की, जिसको हम कहेंगे इट्स अ ग्रेट वर्क एक्चुअली। सो इस तरह से प्रयास कीजिए। आप अपने आजू बाजू में अगर कोई साइट है, वहां पर भी जाकर इस तरह का अगर काम करेंगे, उस साइट के बारे में भी अगर आप खुद एक एनसाइक्लोपीडिया अगर बनेंगे, सो इट विल बी टू गुड। सो ये देखिए, इस तरह से कितनी सुंदरता हम कहें। तो ये फिर उसके बाद हमारा एलोरा, जहां पर कैलाश केव जो फेमस है, बट वी से दैट यहाँ पर हमारे यहाँ पर बुद्धिस्ट केव नंबर 1 to 12 एंड 13 to 29 हिंदू केव्स एंड 29 to 34 जैना केव्स। सो ये हमारी रिलीजियस हार्मनी का एक ब्यूटीफुल संगम जिसको हम कहेंगे। सो ये कैलाश केव हम यहाँ पर देख रहे हैं, और ये वर्ल्ड फेमस जो यहाँ का व्यू है वो हम दिखा रहे। रामायणा और हमारी एपिक्स जो है उसकी स्टोरीज को शिल्प पट में उन्होंने बताई है, पत्थरों में इन्होंने कहानियों को जो है जीवित करने का प्रयास किया है। और हमें ये सीख देता है, देखिए कि इन पहाड़ों में गिरने वाला जो बारिश का पानी है वो कलेक्ट, यानी वो भी नेचुरल वे से कलेक्ट होते हुए यहाँ पर आज भी हमें दिखाई देता है, और आज भी ये उतना ही फ्रेश है। बट हम लोग जो सो कॉल्ड डेवलप कहते हैं, हम खुद को सिविलाइज्ड कहते हैं, हम पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं उसमें, हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो हम्बल रिक्वेस्ट टू दैट,
कि ये हेरिटेज जो है इसे हम मिलकर के जो है संभालना है, इसको हम मिलकर अच्छा रखना है। इस तरह से कितना हेरिटेज हम देखेंगे। ये बदामी चालुक्य पीरियड के जो केव्स हम देखते हैं, बदामी कर्नाटका का जो है आयोर बदामी पट्टदकल, तो बदामी के केव्स के साथ में उसके सामने वाला ये भूतनाथ टेम्पल जो है, पहाड़ पर फोर्ट और सामने ये टेम्पल, इट्स एन ब्यूटीफुल व्यू। देन द नालंदा, तक्षशिला, लाइक दैट, दीज आर द डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, एंसेंट इंडिया। और यहाँ पर नालंदा का जो व्यू हम देख रहे हैं, तक्षशिला इज एन ओल्डेस्ट, बट आफ्टरवर्ड्स नालंदा जो है, तो ये दोनों तक्षशिला एंड नालंदा 10,000 के करीब स्टूडेंट जहां पर पढ़ते थे। और अब हम जहां ये देखते हैं कि इतने सुंदर इस तरह से अलग अलग जगह पर हमारे एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज तैयार की गई और देश विदेशों से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। हो सकता है आपके आजू बाजू में भी ऐसी कोई एक छोटी सी यूनिवर्सिटी हो जिसको हम मठ के नाम से जानते हैं। हमारे मठम जो है तो वो भी इस तरह से थे। जैसे हमारे यहाँ जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पाटना देवी का हम एग्जांपल देते हैं, तो पाटना में इस तरह से जो है अध्ययन करने के लिए हमारे राजाओं ने, यानी यादव किंग्स ने जो है भास्कराचार्य, बीजगणित लीलावती भास्कराचार्य, तो उनको इस तरह से, या उनके जो पोते थे उनको कुछ ग्रांट्स, डोनेशन दिए थे और यहाँ पर अलग अलग खगोल शास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन हो इसके लिए प्रयास किया गया था। तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज को फाइंड आउट कीजिए। बट अगेन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट ये यूनिवर्सिटीज क्यों इतनी वर्ल्ड फेमस हुई? बिकॉज यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है वो ज्ञान की लालसा रखने वाले स्टूडेंट थे, सिर्फ परीक्षा में मार्क पाने की चाहत रखने वाले विद्यार्थी नहीं। ठीक है भाई, ये पढ़ना लिखना नौकरी करना अलग बात है, मगर ज्ञान पाने के लिए यहाँ जो लाइब्रेरियां थी, इट्स एन रिचेस्ट लिटरेरी सोर्सेस। हमारे यहाँ पर पुणे जैसे शहरों में कितना रिचेस्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ पुणे थी काय उन्हें, ये तो कहावत ही है। बट आप पुणे में वाडिया कॉलेज हो, एसपी कॉलेज हो, पुणे यूनिवर्सिटी हो, डेक्कन कॉलेज हो, भाडारकर इंस्टीट्यूट हो, या फिर ऐसी कितनी तो भी लाइब्रेरियन के नाम बता सकते हैं जहां पर मैं कितने दिनों तक, मैं जब ट्रक पर क्लीनर था तब वहां आकर के भारतीय इतिहास संशोधन मंडल वगैरह वहां जाकर के हम जो है पढ़ने का प्रयास करते थे। हालांकि हमें एंट्री नहीं मिलती थी क्योंकि मैं ट्रक क्लीनर था, बट आफ्टरवर्ड्स बाद में जब भी मौका मिला तो जाकर के हम वहां पर पढ़ने का प्रयास किए और आज भी कर रहे हैं। सो ये हमारी जो सोर्सेस है ना, हमारी जो लिटरेरी सोर्सेस है, उसको जरूर यूज कीजिए, क्योंकि लाइब्रेरी में कई किताबें ऐसे देखते इतने सुंदर बुक्स है बट पढ़ने वाला नहीं है। ऑनलाइन की जगत में भी ऐसे लाखों किताबें अवेलेबल है, बट whenever it's possible to you, please go to the library, take the books and enjoy it। अब हम जब हेरिटेज में पीछे और जाके देखें तो 7th सेंचुरी में हमारे पल्लवा, चेर, चोल, पांड्य, पल्लव, सो ये डायनास्टी जो थे उसमें पल्लवा डायनास्टी में ये जो पिलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आज भी हमारे जो फ्लाइंग और जो ब्रिज बनते हैं, उड्डान पुल जिसको हम कहते हैं, सो इसके लिए जो हम जो पिलर्स यूज कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हुआ। तो बीइंग एज अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जस्ट आई वांट टू से दैट स्टडी दीज टाइप ऑफ हेरिटेज एंड स्ट्रक्चर्स, तो हो सकता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर्स को हम जो है खड़ा कर सकेंगे। आप जब मदुरई जैसे टेम्पल्स को देखते हैं तो इतना विशाल ये मंदिर जो बना हुआ है, इसके गोपुरम 10 ब्यूटीफुल गोपुरम जो है, सो एक ये मंदिर जो है जैसे माना एक पूरा टाउनशिप है इस मंदिर के अंदर। तो ये गोपुरम यानी जो 14 मंजिला ऐसे गोपुरम हम देखते हैं, तो कितना ब्यूटीफुल प्लान उस समय में बना है। देखिए 12वीं शताब्दी में बना हुआ ये टेम्पल, सो कितना सुंदर रूप से 12वीं-13वीं शताब्दी में ये बना, और इसके एंट्री डोर्स वगैरह देखेंगे तो कितना वेल प्लान्ड टेम्पल है। यानी एक टेम्पल नहीं, मैंने जैसे कहा था, इट्स नॉट अ सिंगल टेम्पल, वी कैन से इट्स एज अ एजुकेशनल, हमारे यूनिवर्सिटी भी था, इट्स अ टाउन, ये हमारा शहर नगर भी था। ये कॉरिडोर्स को भी जब हम देखते हैं तो कॉरिडोर्स के पिलर्स के ऊपर के याली या फिर ये लायंस या सिंबल जो देखते हैं, या फिर इसका जो सीलिंग देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटी देयर। इतनी सुंदरता हमारे इस स्थापत्यकारों ने, शिल्पकारों ने निर्माण की हुई है। ये रिचेस्ट हेरिटेज है हमारी दुनिया के देश का, मगर इसके साथ साथ उन्होंने उन लोगों की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, जैसे हम सिर्फ भगवान को, देवता के ऊपर पानी डालने के लिए ये सिर्फ वाटर टैंक बने, ऐसा नहीं है। आप ये समझिए कि इस तरह से जो सेक्रेड पूल्स बने, तो मनुष्य का जनजीवन जो पानी पर आधारित है, तो इसके लिए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये बने थे। मगर आज हम लोग इस ब्यूटीफुल वाटर टैंक्स को, हमारे हेरिटेज को जो है, इसमें मिट्टी डाल करके, इसको बंद करके, छोटी छोटी गांव में है इस तरह से हमारे, जिसको हम यहाँ पर कुंड कहते हैं, अपने यहाँ पर हमारे गांव में कुंड कहते हैं, हम जिसको पुष्करनी कहते हैं। सो वाटर बॉडीज आर देयर, बट व्हाट हैपेंस नाउअडेज, जो भी देशमुख है, पाटिल है, पटवारी, जो भी उसमें मिट्टी डाल करके, उसको बंद करके, उस पर जो है कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
सो जहां पर हमें जीवित पानी के स्रोत प्राप्त हो सकते हैं, उसी को हम क्यों बंद करना चाहते हैं? बच्चों को विनती है कि अपने गांव में, अपने आजू बाजू में इस तरह से अगर हमारा हेरिटेज है तो उन्हें जरूर बताइए। जो भी ये कर रहा है उसको जाकर के विनती कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये न्यू जनरेशन ये ताकत रखती है। अगर आप प्यार से समझाएंगे तो लोग इसको समझ सकेंगे। इस तरह से अभी हम देखें, ये बृहदेश्वर टेम्पल, इतने बिगेस्ट टेम्पल्स क्यों बने, क्या मकसद था इसका? देखिए, मैं ज्यादा इसके बारे में, मुझे आर्किटेक्चर में, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, उसका ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट इतना बताना चाहूंगा, इतने नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल हो, द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल हो, तो इतना हाइट क्यों इसका? ज्यादा से ज्यादा ईश्वर तक पहुंचने का ये प्रयास वो अपनी तरफ से करते रहे। मैं ये समझता हूं कि हमें भी द प्योर सोल, हमारी जो है आत्मा, उतनी शुद्ध रहनी है, तो उसके साथ जो है हम ऊंची सोच रख सकते हैं। कहते हैं ना, लिव सिंपल एंड थिंक हाई। ये सोच जो है हमारे यहाँ पर राजाओं ने शायद इन मंदिरों के द्वारा हमें देने का प्रयास किया था। गुर्जर प्रतिहारों का ये टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल हमारे राजस्थान और गुजरात के एरिया में जब हम जाते हैं, ये तिली का मंदिर लेफ्ट साइड में, इसका एंट्री पोर्शन भी देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है। और ये हमारे कर्नाटका का दोड बसप्पा टेम्पल, डम्बेल का, ये यूनिक स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, 24 पॉइंटेड टेम्पल्स यहाँ पर है। इतनी सुंदरता, अगर हम कागज पर भी इस तरह का मंदिर बनाने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा। एंड दिस चालुक्य स्टाइल पिलर्स आर देयर इन गदग। सरस्वती टेम्पल है ये, वहां के मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाजू में। देखिए इन पिलर्स को, यहाँ हम बोलते हैं बेलूर, हड़ेबीड़, यहाँ पर जो है लेफ्ट पिलर्स, कई लोगों ने कई सारे फेक वीडियो भी बना के डाले। उस समय में कुछ ऐसे मशीन थे क्या कि जिसमें ये पिलर बनाए जाते थे, 12 फीट लंबे, 15 फीट लंबे ये पिलर बनाए जाते। नो लेथ मशीन्स आर देयर डियर्स। यहाँ पर जो है टूल्स इस तरह से इंसान ने डेवलप किए थे, और अपनी परंपरागत रूप से, ट्रेडिशन रूप से वो इतना एक्सपर्टीज उन्होंने हासिल किया था। आप किसी भी काम में अपना मन लगा करके अगर काम करेंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के अगर वर्क करेंगे, पैशन अगर आप में है, तो आप ये सुंदरता निर्माण कर सकते हैं। हेरिटेज के द्वारा हमें ये सीखना है, इस तरह की सुंदरता हम अपने हर काम में ला सकते हैं, बट नीड इज टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस, एंड आपको जो है पैशन रहना उसके लिए। यहाँ पर हम महाराष्ट्र का ये हमारा औंढा नागनाथ का टेम्पल देखते हैं, शिव टेम्पल, इसके ऊपर भी ऐसी कितनी तो भी सुंदर प्रतिमाओं को आप देख सकेंगे। अब जब हम शिला शासनों का अध्ययन करते हैं गांव में जाकर के, ये हमारे यहाँ का बीदर डिस्ट्रिक्ट का, मेरा जो मदर का गांव है उसके नजदीक में गोड़ चिंचोली नाम का गांव है। ये पत्थर जहाँ आजू बाजू में पड़े होते हैं, आप लाकर के उसे जो है, जो लोगों ने उसको कई बार कलर किया होता है, वार्निश लगाए होते हैं, तो थोड़ा उनको समझाइए, लोगों के सामने आप थोड़ा काम करके दिखाइए उनको कि ये क्या कहता है। आप अगर थोड़ा सा उनको इसके बारे में अवेयर करेंगे, लोग जो है वो खुशी से ये सीख जाएंगे, उसका महत्व समझ सकेंगे। अब ये दौलताबाद का फोर्ट, अब हम टेम्पल्स के जैसे देखते हैं, उसी तरह से हमारे फोर्ट जो है, तो ये हमारे किले, फोर्ट्स, इसका निर्माण, ये हेरिटेज का जो निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सामरिक व्यू जिसको हम कहेंगे, युद्ध की दृष्टि से, एक डिफेंस की दृष्टि से अगर आप इस फोर्ट्स को देखेंगे, तो ये अपने आप में एक ऐसे बुलंद किले हैं कि जिसको जीतना बहुत ही मुश्किल था। आप अलाउद्दीन खिलजी की स्टोरी को जानते हैं कि इसको जीतने के लिए क्या क्या उसने नहीं किया। अब हम आते हैं इसी तरह से हमारे यहाँ के शिल्पों की तरफ में, तो यहाँ देखते हैं रामप्पा टेम्पल, जैसा हमारे यहाँ का तेलंगाना का जो एक टेम्पल है नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट, तो इतना ब्यूटीफुल ये टेम्पल बना है। ये इन कलाओं को अगर आप देखेंगे, देखिए इसके लेफ्ट साइड वाला ये जो है, इसके पैरों का ये सैंडल जैसा आप जो व्यू देख रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हर सुंदरता जो है कलाकार ने अपनी दृष्टि से जितना भी हो सकता है वो सब दिखाने का, सब निर्माण करने का प्रयास उसने किया है। मगर इन कलाओं में जो 64 आर्ट जिसको हम कहते हैं, जो नृत्य हो या फिर संगीत हो, तो इन सभी कलाओं को उसने इसमें दिखाने का प्रयास किया है। अब चंदेल डायनास्टी में जब हम चलते हैं, खजुराहो के टेम्पल्स जो वर्ल्ड फेमस ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, यहाँ पर भी बहुत बार ये देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो काम शिल्प जो है, वहाँ के युगल शिल्प जिसको हम कहते हैं, सिर्फ उसकी तरफ देखने का प्रयास होता है। बट अगर आप यहाँ के सिर्फ शिखरों का स्टाइल अगर देखने का प्रयास करेंगे, यू विल गेट मोर देन 10 to 12 टाइप्स ऑफ डिफरेंट शिखरास। और आप अगर यहाँ के यहाँ बाकी शिल्पों को भी अगर देखेंगे,
तो ओनली 10% आर दैट प्रणय शिल्पा, बट अदर 90% शिल्प ऐसे है कि जो हमारे उस समय के जनजीवन, हमारा व्यापार किस तरह का था, उसके बारे में जो है वो हमें सभी जानकारी उसमें से प्राप्त होती है। कोणार्क का सन टेम्पल जो एक विश्व प्रसिद्ध टेम्पल है, यहाँ का ये सूर्य देवता की मूर्ति को हम देखते हैं, और सन टेम्पल के बाजू में यहाँ का जो हिल्स जो है, तो इस व्हील्स के साथ ये हमें पता चलता है हमारे 12 ऋतु और इसके 12 महीने, 12 मास जिसको हम कहते हैं, या फिर ऐसी कई सारी स्टोरीज इसके साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ के पीछे के जो शिल्प है, जो कथक और भरतनाट्यम के जो लोग हैं, तो इन शिल्पों के द्वारा वो बहुत कुछ कहने का प्रयास करते हैं। तो आप भी इन स्टोरीज को समझने का जरूर प्रयास करें। अब यहाँ पर हम आते हैं कर्नाटक के, इसमें पर्टिकुलरली हसन, शिमोगा, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, सोमेश्वरा टेम्पल, या फिर आप ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल, होयसला पीरियड के जो मंदिर थे 13वीं और 14वीं शताब्दी के। सो इन मंदिरों को देखेंगे तो पता चलता है, देखिए एक छत है, मंदिर का छत है, और इसमें कितना ब्यूटीफुल ये निर्माण किया हुआ है। और ये निर्माण करने वाले लोग, ये मंदिरों के दीवारें हैं, तो ऐसा इंच एंड इंच पार्ट जो है उसका बॉटम टू टॉप, उसको उन्होंने पूरा जो है वो सुंदर निर्माण करने का प्रयास किया है। सोप स्टोन पर्टिकुलरली इसके लिए यूज किया है। सो ये एक पीढ़ी में हुआ क्या नहीं, आप अगर ये यहाँ का जो इंफॉर्मेशन बोर्ड है, जब भी मंदिरों में प्रवेश करते हैं या कहीं जाते हैं, किसी भी हेरिटेज प्लेस पर जाते हैं, तो कृपया वहां के जो भी इंफॉर्मेशन बोर्ड्स होते हैं उसको जरूर पढ़िए। जब हम अजंता जाते हैं या एलोरा जाते हैं कहीं भी, तो ये जरूर पढ़िए, हमें पता चलता है उसकी कहानी, इस विरासत की कहानी क्या है ये पता चलती है। 3 पीढ़ियों ने एक के बाद एक जो है इसको निर्माण करने का प्रयास किया। जब किसी का देहांत हुआ तो उसके बेटे ने इसी को आगे बढ़ाया, जब उसका भी डेथ हुआ तो उसके पोते ने फिर आगे चल करके इसे निर्माण करने का प्रयास किया, पूरा करने का प्रयास किया। सो ये माने शताब्दियों तक ये जो है निर्माण हुआ, जब जाकर ये सुंदरता निर्माण हुई। आप यहाँ पर सामने जो देख रहे हैं, ये बेलूर के टेम्पल का गर्भगृह का एंट्री डोर है, और उसके ऊपर का लिंटल पोर्शन जिसको हम कहते हैं। व्हाट अ ब्यूटी इन दिस स्टोन। आप देखेंगे यहाँ पे ये व्हील जो दिख रहा है, उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे, ये नृत्य करने वाले, बांसुरी बजाने वाले, मृदंग बजाने वाले, ये शिल्प, ये हमारी मर्यादा है कंप्यूटर में दिखाने के लिए। अदरवाइज वी कैन सी इट्स एन ब्यूटीफुल व्यू। इतना सुंदर रूप से इसको निर्माण किया है। बाहर में जब हम देखते हैं तो विंडोज की कितनी स्टाइल्स है, खिड़कियां जिसको हम कहते हैं, तो मंदिर की ये खिड़कियां और उसके ऊपर की ये जो सारी अप्सराओं के जो शिल्प हम देख रहे हैं, सो ये यानी वास्तु का जो है ना परिपूर्णता की ओर हमारे जो स्थपति, हमारे जो कारगिर थे, वो जाने का निरंतर प्रयास करते रहे। और ये चन्नकेश्वर टेम्पल है सोमनाथपुरा का, यहाँ भी आप देखते हैं बॉटम टू टॉप इट्स रियली मार्वलस टेम्पल्स। तो जरूर देखिए। मैं तो कहता हूँ, मैं 7 days आई वॉज स्टे हियर, बट टिल देन 7 दिन तक लगातार जाकर देखने के बाद भी आज भी ऐसा लगता है कि फिर से एक बार जाकर के उसे मैं देखूं। इतना ब्यूटीफुल हेरिटेज यहाँ पर है। ये इसी टेम्पल के अंदर का सीलिंग है। अब हम्पी की कहानी भी इस तरह से 26 किलोमीटर के दायरे में लगभग 1000 मंदिर है। विरूपाक्ष टेम्पल, अगर आप ये 9 मंजिला गोपुर को देखना चाहते हैं, पिनहोल कैमरा सिस्टम, जिस समय कैमरा का निर्माण भी नहीं हुआ था, उस समय में ये पूरे गोपुर का जो है ये परछाई, शैडो जो है, एक छोटे से होल से हम सामने वाली दीवार पर एज इट इज देख सकते हैं, जिसे पिनहोल कैमरा सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये कमल महल, लोटस महल के नाम से जिसे जाना जाता है, जो अपनी महारानी के लिए उस समय के कृष्णदेवराय के पीरियड में बनाया गया। विशेष बात यह है, एक भी दरवाजा, एक भी खिड़की नहीं है, बट टिल टुडे इट इज एन एसी। हम जिसको कहते हैं ना, हमारे घर में एसी लगाने की जरूरत है, सो जहां एक भी दरवाजा, एक भी खिड़की नहीं, ऐसे महल को उसने एसी बनाया, एंड टिल टुडे इट्स देयर। आज भी जाकर के वहां आप वो देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। 26 किलोमीटर की दूरी से जिस तरह से डैम उन्होंने बनाया, पानी जो लाया, इट्स एन रियली वंडरफुल वर्क। ये अच्युत राया टेम्पल कॉम्प्लेक्स है यहाँ का। इसकी सुंदरता देखिए, यहाँ पर पहाड़ और एक तरफ में कुदरत और उसमें इंसान का ये निर्माण, इट्स एन रियली ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड नेचर। सो आर्टिफिशियल एंड नेचर का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सो लोकेशन को भी किस तरह से ढूंढा जाए, तो ये भी उसका एक सबक हमें सिखाते हैं।
ये विजय विठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर भी आप इस तरह का चारों ओर ये रथ देख सकते हैं। और इसकी सबसे विशेष बात है कि यहाँ पर आप ये जो पिलर्स देख रहे हैं, इसके पत्थरों पर अगर आप एक छोटा सा वुडन स्टिक लेकर के अगर आप देखेंगे, उस पर अगर मार के देखेंगे, हमारे आर्कियोलॉजी के गाइड वो दिखाते हैं, तो यहाँ पर आप सारे गम पद निसा के स्वर सुन सकते हैं। दीज आर दी म्यूजिकल पिलर्स। तो ब्रिटिश लोगों ने 1928 में इसमें से एक पिलर काट करके वो लेके गए थे, ये देखने के लिए कि इसे कैसा निर्माण किया गया। बट आज तक भी ये ढूंढ नहीं पाए, प्रयास कर रहे, रिसर्च कर रहे। बट मुझे ये कहना ये है कि 500 साल पहले हमारे यहाँ के जो स्थपति थे जिन्होंने इसे निर्माण किया, सो ये है हमारा साइंस, हमारी नेचर और हमारा अपना ट्रेडिशनल और जो बेस्ट नॉलेज जिसको हम कहें, ये सबका कॉम्बिनेशन है। आप कहाँ पर किसको हॉलो रखेंगे पाइप्स को, तो क्या क्या आवाज आ सकती है, उसे कैसे बनाया जा सकता है। सो ये इतना गहराई तक जाकर अध्ययन किया, जब जाकर के ये एक जिसको कहते हैं ना यूनिकनेस क्रिएट हुआ। तो आप प्रयास, आप अगर दुनिया में कुछ अगर बेस्ट बनना चाहते हैं तो यूनिक बनने का प्रयास कीजिए, या यूनिक क्रिएशन निर्माण करने का प्रयास कीजिए। आप पलिताना में जैसे शहरों में जब विजिट करते हैं, पलिताना जो गुजरात में है, तो यहाँ पर देखते हैं कि इस एक ही कॉम्प्लेक्स में 863 टेम्पल्स है, ये पलिताना केस में। सो फिर आगे बढ़ेंगे गुजरात केस में, तो राण की वाव, हम सिर्फ ये पानी का कुआं नहीं बनाए साहब, तो कुएं के साथ साथ हमने दिखाया कि सुंदरता कैसे निर्माण की जा सकती है। सो ये राण की वाव एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अंदर चलेंगे देखेंगे तो इस तरह से अराउंड 1000 ऑफ दिस स्कल्पचर्स, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स आर देयर इन दिस वाटर बॉडी। एक पुष्करनी के अंदर इतनी सुंदर ये है। और प्रयास करें कि इस तरह की और भी वाटर बॉडीज वहां पर है, जैसे आप अगर गुजरात राजस्थान के आजू बाजू है, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में रोहन काले जैसे युवाओं ने इस तरह का प्रयास किया। सो इस तरह की कई सारी वाटर बॉडीज इस इलाके में है, ये ढूंढने का प्रयास हम करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस टेम्पल्स? लोग कहते हैं दुनिया में कई सारे मंदिर देखे मगर ऐसा मंदिर नहीं देखे। इसका कहते हैं कि अगर हम साड़ी का पल्लू अगर इसके नीचे से डाल दे तो पिलर्स के नीचे से वो जा सकता है, ये बताया जाता है। ये कहावतें हैं क्या? नहीं, जाकर के देखिए, प्रयास कीजिए कि क्या है, समझ में आएगा। अगर आप यहाँ के पिलर्स के अंदर से अगर आप एक अगरबत्ती जो होता है ना उसकी अगर काड़ी डाल देंगे, धागा डाल देंगे, तो धागा इसमें से पिलर्स में जो कार्विंग किया है उसमें से वो बाजू वो थ्रेड उसके अंदर से आ सकता है, सुई जो है उसके अंदर से आ सकती है। इसका मतलब क्या है? इतना बारीकी से जो कार्विंग किया हुआ है ना, सो ये नजाकत, इसकी सुंदरता जो है वो समझे। अब इस तरह से जब हम मध्य युग में आएंगे तो आप अलग अलग टॉम्ब जिसको हम कहते हैं, चाहे वो इत्माद-दौला का हो, हुमायूं का मकबरा हो, ये ऐसे अलग अलग इस्लामिक आर्किटेक्चर को भी हम देखते हैं। ये हमारे फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा है। इसी के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, जो उनका ब्यूटीफुल मार्बल में बनाया हुआ जो अंदर एक उनका भी मकबरा है, वो देखते हैं। तो वो भी बहुत सुंदर है। ये पंचमहल है, 5 मंजिला ये इमारत जो बनी है, इट्स रियली ब्यूटीफुल इनसाइड। अगर आप इसके अंदर जाके देखते हैं तो कितनी तो भी पिलर्स और उसके ऊपर का डिजाइन, लोटस डिजाइन इसके ऊपर के बहुत सुंदर है। ये पूरा रेड फोर्ट आगरा का जो है एरियल व्यू हम देख रहे हैं, और इसके अंदर के ये पिलर्स, अंदर का ये मुसम्मन बुर्ज जिसके ऊपर शाहजहां को रखा गया था और जहां पर ही उसने अपने जो है प्राण गंवाए थे, सो ये मुसम्मन बुर्ज, ये मुमताज महल। और उसके बाद ये देखते हैं उस समय 19th सेंचुरी में कुछ ब्रिटिश आर्टिस्ट ने इस तरह के पेंटिंग्स बनाए थे उसके। और आज भी वहां पर आप अगर दीवाने आम दीवाने खास अगर देखते हैं तो देखिए इस आर्चेस को और उसकी ब्यूटी को। और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था की पौर्णिमेच्या रात्रीचा ताजमहल म्हणजे यमुनेकाठी विहार करणारी स्वर्गातली जणू सुंदर अप्सराच। तो ये वाई सच ब्यूटी इज देयर। तो ताजमहल की इसमें इतनी ब्यूटी क्यों है, किस तरह से इसे निर्माण किया गया, आप अगर ये पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे, इसके ऊपर का जो पच्चीकारी वर्क है या फिर जिसको हम नस्टलिक स्क्रिप्ट या जैसे स्क्रिप्ट्स को जो कैलीग्राफिक आर्ट जिसको कहते हैं, पत्थरों में कैलीग्राफी, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। ये हम यहाँ पर देखते हैं, हम कागज पर कैलीग्राफी करने का पिछले 3 महीनों से प्रयास कर रहे हैं मगर आज भी हम उतने सफल नहीं हुए, हमारी टीचर जो हमें सिखा रहे हैं। बट यहाँ तो हमारे कारीगरों ने जो है पत्थरों में इस तरह की कैलीग्राफी की है। और ये पच्चीकारी वर्क आप जो देख रहे हैं,
ताजमहल की सुंदरता इसमें है कि इसमें एक ही तरह का स्टोन नहीं यूज किया गया है, मार्बल के भी कई सारे वैरायटीज यूज किए गए, चाहे वो मकरान से हो, कई अलग अलग जगहों से हो, इसको यहाँ पर यूज किया गया है। और आप इनसाइड में जब ये डोम देखते हैं तो इसमें भी ब्यूटीफुल करेंसी। हमारे औरंगाबाद ने बीबी का मकबरा जो बनाया, जिसे दक्कन का ताज कहते हैं, तो इसका इनसाइड व्यू भी जब हम देखते हैं तो इसके सीलिंग्स में भी इस तरह का वर्क हमें दिखाई देता है। अब हम चलते हैं पंजाब की तरफ में, अमृतसर। ये अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो भारत में विजिट किए जाने वाले मोस्ट विजिटेड 10 प्लेसेस है, उसमें एक प्लेस माना जाता है। और ये भी एक बहुत ही सुंदर निर्माण किया है। बीच में एक मिशन चला था, मगर उसके बाद भी इन्होंने इसको जो है इंटैक्ट रखा हुआ है। अब ये जयपुर का हवा महल, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कोई बड़ी ये इमारत वगैरह होगी, बट डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ जो है फ्रंट साइड वॉल है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा छोटा छोटा वो रुकने के लिए वगैरह जो है वो प्लेस है। मगर बाकी पीछे कुछ ऐसा हमारे जैसा फोर्ट होता है या जिस तरह से हमारा महल होता है, उस तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन ज्यादा इसके पीछे नहीं है, बट टिल देन इट्स एन रियली ब्यूटीफुल व्यू। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जयपुर में जिस तरह से जिसको हम कहते हैं हमारा सभी वेधशाला की तरह, यानी हमारी टाइम क्या हुआ है, कौन सा ऋतु चल रहा है, उसके लिए इन्होंने उस समय जो बनाया है 15th-16th सेंचुरी में महाराजा जयसिंह, तो उनके द्वारा। तो ये आज भी वहां जाकर के आप देख सकते हैं, वहां के गाइड आज भी आपको बताते हैं कि कौन सा ऋतु है, कितने बजकर कितने मिनट कितना सेकंड हुआ है, यहाँ तक का उतना अचूक कालमापन जिसको हम कहते हैं। सो ये इन्होंने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। अब आर्किटेक्चर, साइंस, एनवायरनमेंट, इसका जिसको स्टडी है वही इसको निर्माण कर सकता है, ये भी याद रखिए। अब ये सिटी पैलेस वहां का और उसका फ्रंट व्यू है। और यहाँ के ऐसे किले 6 फोर्ट्स ऐसे हैं कि जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज किया गया है। ये आमेर किले का व्यू आप देख रहे हैं। यहाँ के दीवारें, यहाँ के दरवाजे, यहाँ की खिड़कियां, इसके ऊपर के पेंटिंग्स, कलर्स, वंडरफुल कॉम्बिनेशन इज देयर। तो कितनी सुंदरता, कितनी आंखों में भरने का हम प्रयास यहाँ पर करेंगे। सो ये व्यू तो आप इसमें जगह जगह पर देख सकेंगे। 3 इसमें बटा हुआ ये शहर, जिसमें हम गुलाबी शहर कहते हैं, पीला शहर कहते हैं, और उसके बाद अभी जो नया बना हुआ शहर का ये। सो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और इसी तरह से हमारे महाराष्ट्र के भी फोर्ट्स को अभी उसमें दर्ज करने का प्रयास हो रहा है। फाइनल लिस्ट में अभी वो पहुंच चुका है। पलक्कड़ फोर्ट है केरला का, इसका भी व्यू इतना ब्यूटीफुल है। उसके बाद हम महाराष्ट्र के फोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। लोहगढ़ हमारे यहाँ का, फिर सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, जंजीरा, तो ये सारे किले आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए थोड़ा सा बैक में जाकर के देखेंगे, इसमें इतनी सुंदरता है। यहाँ पर हमारे ये फोर्ट्स को हम देखेंगे, यहाँ पर ऐसा इस तरह का व्यू क्यों है? इसका कारण है हमारी गवर्नमेंट नहीं, हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम मत कीजिए। इसके लिए कारण है हम लोग। अगर हम जिसको कहते हैं ना, हम मूंछों पर ताव दे करके बताते हैं कि ये हमारे देश की विरासत है, बट व्हाट्स योर कंट्रीब्यूशन फॉर दिस हेरिटेज? क्या किया आपने इसको बचाने के लिए? जाकर के अंदर अपना नाम लिखने का प्रयास किया, इसका नाम, उसका नाम, एक एक पत्थर की दीवार पर 200, 300 नाम, और उधर लव का सिंबल होता है। प्यार कीजिए, इन पत्थरों से भी प्यार कीजिए, कौन नहीं कहता है। और इसको अगर आप सुंदर रखने का प्रयास करेंगे तो ये आपके शहर का और आपके एरिया का इतिहास दुनिया को सालों तक बताता रहेगा। वरना आप तो खत्म हो जाएंगे, मगर आपके साथ साथ ये जो है ये हेरिटेज भी खत्म हो जाएगा अगर हम मिलकर इसे संभालने का प्रयास नहीं करेंगे। विशेष बात यह है कि ये समुद्र में किले बनाए, मगर इसके अंदर मीठे पानी के कुएं बनाए। सो हाउ इट्स पॉसिबल? शाला वास्तु जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स को अगर हम पढ़ेंगे तो शायद आप इसका जो है ये निर्माण कैसे किया वो आप उसमें समझ सकते हैं। नाउ द मराठा पीरियड टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल, तो ये हमारे यहाँ का महाराष्ट्र का स्पेशलिटी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश का महेश्वर जो है अहिल्या देवी होलकर, तो उनके द्वारा निर्माण किया गया ये वहाँ का पैलेस, होलकर पैलेस। और ये उन्हीं के द्वारा, अहिल्या देवी होलकर के द्वारा, हमारे यहाँ के नासिक डिस्ट्रिक्ट में चांदवड नाम की जो जगह है, तो चांदवड का, जिसे रंगमहल के नाम से जाना जाता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल वुडन आर्ट वर्क। वुडन वर्क कितना सुंदर किया, क्राफ्ट शिल्प, तो लकड़ियों के इसमें इतना ब्यूटीफुली कार्विंग किया। आज भी जाकर देखते हैं, अभी अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने प्रयास करके इससे जो है अच्छा बनाने का प्रयास किया, अच्छा रखने का प्रयास किया। और इस तरह से हमारे यहाँ हैदराबाद में भी आप निजाम के पैलेसेस को अगर देखते हैं तो चौमोहल्ला पैलेस, या फिर उसका ये पैलेस के अंदर का इनसाइड डाइनिंग रूम वगैरह, वो भी सुंदर है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ,
अगर आपको किसी भी नाम से, किसी भी व्यक्ति से, व्यक्ति के कृत्यों से, अगर कुछ कृत्य जिसको कोई छूटा नहीं हमारे देश में, राम से लेकर के रावण से लेकर के हर किसी को गाली देने वाले लोग हमारे देश में है ही है। बट टिल देन हेरिटेज को हेरिटेज की नजर से देखिए, किसी कलाकृति को, किसी विरासत को उसकी दृष्टि से देखिए, ये उसमें क्या अच्छा है, हम उसमें से क्या सीख सकते हैं, ये सीखने का प्रयास कीजिए। किसी को गाली देकर के जो है हम उसको खत्म या उसको मिटाने का प्रयास करना, ये बड़ी गलत बात है। ये सालारजंग म्यूजियम है हमारे हैदराबाद का, जहां पर भी इस तरह का प्रयास किया है, और हमारी कला की कितने अनमोल नमूने हमारे संग्रहालयों में जो है संजो के रखने का प्रयास हमारे संग्रहालयों ने किया है। सो म्यूजियम का स्टडी इस दृष्टि से कीजिए कि हम इस विरासत को समझ सके और हम उसका प्रॉपरली अध्ययन कर सके, उसको प्रॉपर रूप से डिस्प्ले कर सके, क्योंकि बेस्ट डिस्प्ले टेक्निक्स होना, तो प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क जिसको हम कहते हैं, तो ये करने का, अच्छा करने का प्रयास हम इसमें से कर सकते हैं। ये लक्ष्मी विलास पैलेस जो हमारे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने बनाया था 1890 में, उसके अंदर भी जाकर देखते हैं तो इस तरह से आपको ये सुंदरता दिखाई देती है। और कई सारे पैलेसेस है इस तरह के, ये बासालिका का, ये हमारे गोवा का सेंट फ्रांसिस चर्च जो है 1605 में बनाया हुआ पुर्तगीजों के द्वारा, जिसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चुना गया है। और इस तरह की कई सारी इमारतें हमारे यहाँ पर जगह जगह हम देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई हो, चाहे हमारे पुणे का ससुन लाइब्रेरी हो, ये आगरा में जब विजिट करते हैं तो ताजमहल के बाजू में 1870 में बनाया ये स्वामी बाग, तो ये भी देखने का जरूर प्रयास कीजिए। उसके बाद अल्बर्ट हॉल म्यूजियम हमारे जयपुर का, मैंने पीरियडिकली लेने का प्रयास यहाँ पर किया है। खालसा कॉलेज है हमारे अमृतसर का 1892 में बना हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ का ताज होटल, और उसके बाद में बना गेटवे ऑफ इंडिया, ये मैसूर पैलेस का इनसाइड व्यू है। देन विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता 1921 में बना हुआ इंडो सासनिक आर्किटेक्चर स्टाइल का एक बेस्ट नमूना हमारा राष्ट्रपति भवन राजपथ का। उसके बाद जहां पर हम राजपूत, मुगल एंड हिंदू स्टाइल तीनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, ये रामकृष्णा टेम्पल बेलूर का 1938 में बना हुआ, ये हमारी बेंगलोर की विधानसभा है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, मैं हेरिटेज में ये बात जरूर बताना चाहूंगा, पौंडीचेरी अगर कभी गए तो महर्षि अरबिंदो का आश्रम जैसे देखते हैं, उसी तरह से ये 1968 में बना हुआ ऑरोविले जो है उसे जरूर देखिए, क्योंकि ऑरोविले में आप एक ऐसी टाउनशिप देखेंगे जहां पर कोई जाति, कोई धर्म, कोई देश की बॉर्डर नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पैसों तक की, नो नीड्स ऑफ मनी, ऐसी आवश्यकता नहीं, ऐसी एक टाउनशिप बनाने का, यूटोपिया जिसको कहते हैं, तो आदर्शवाद पर आधारित ये इस तरह का एक टाउनशिप बनाने का प्रयास किया गया है, जहां पर 58 कंट्रीज से, नेशन से 3000 लोग आज वहां पर रहते हैं। ये उसका कंप्लीट व्यू है, कभी गए तो जरूर वहां विजिट करें और समझने का प्रयास करें कि जिसको हम ऋग्वेद में कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, तो इस तरह का एक विजन रखते हुए इस टाउनशिप को निर्माण करने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ का कन्याकुमारी का विवेकानंदा रॉक मेमोरियल, ये भी हमारे यहाँ का आर्किटेक्चर एंड आर्ट का एक बेस्ट नमूना जिसको हम कहेंगे, ये निर्माण किया। आधुनिक युग में जब हम आते हैं तो ये पुणे में ही आपके इन्फोसिस का जो ऑफिस बना हुआ है 1983 में। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मैं हिंजवड़ी में आया था, हिंजवड़ी फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, वहां पर भी जो उनकी इमारतें जो बनी हुई है, इट्स एन रियली ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। एंड दिस लोटस टेम्पल दिल्ली 1986 में बना हुआ एक सुंदर नमूना आर्किटेक्चर का, हेरिटेज में, मॉडर्न हेरिटेज में हम इसे जरूर ये करते हैं। इन्फोसिस ग्लोबल एजुकेशन सेंटर मैसूर का जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ अंदर एजुकेशन के दृष्टि से जो बनाया गया है, इतना सुंदर रूप से बनाया है, चाहे वो वहाँ के स्टडी हॉल हो, वहाँ की लाइब्रेरी हो, या टीचर्स के लिए ट्रेनिंग हॉल हो, बहुत सुंदर रूप से इसे बनाया गया है। एंड दिस द साइबर टेक्चर यज्ञ मुंबई में जो बना हुआ है 2010 में, देखिए आपके लिए यहाँ पर चैलेंजेस है। अगर आप सच में मास्टर्स है, अगर आप कोई ऐसी एक्सपर्टीज रखते हैं, कम से कम कागज पर बनाकर दिखाइए इस तरह का। वास्तविकता में जब बनाएंगे तब बनाएंगे, मगर हेरिटेज को इस दृष्टि से देखिए, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या निर्माण कर सकता हूं, मैं क्या बना सकता हूं, इट्स अ चैलेंज टू यू। अगर बना सकते हैं तो जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। ये देखिए हमारे बेंगलोर में बना हुआ एक बिल्डिंग है, सो फ्लेक्स सॉल्यूशन का ये कॉर्पोरेट ऑफिस है। ऐसा लगता है जैसे कोई कैमरा और इसका पूरा उसका जो रोल होता है, इस तरह का उसका ये पूरा बनाया है।
अभी अभी हमारे यहाँ की इसी विरासत को आगे चल करके जिंदा रखने का प्रयास एक शेट्टी ग्रुप्स ऑफ कंपनीज ने किया था। ये भटकल तालुका जो है उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर उन्होंने मुरुडेश्वर का ये टेम्पल जो बनाया। तो आप यहाँ बाजू में जो है मदुरई के सॉरी ये हमारे नटराज चिदम्बरम टेम्पल जो है उसका गोपुर मैंने यहाँ दिखाया है। उसी तरह देखिए यहाँ पर कि मॉडर्न आज के तारीख में भी हमारे स्थपति और कारीगरों को साथ लेकर के हम इस तरह के मंदिरों को कैसे निर्माण कर सकते हैं, उसके कितने तो भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ये अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली का हो या फिर चाहे हमारे बाप्स टेम्पल जो स्वामीनारायण टेम्पल ह्यूस्टन टेक्सास का, इनसाइड व्यू देखिए ये अभी कुछ साल पहले बना है, 8-10 साल पहले बना हुआ है। सो इसके सीलिंग्स में इतना ब्यूटीफुल कार्विंग, मार्बल में इतना ब्यूटीफुल कार्विंग किया जा सकता है, पत्थर पर हम जल्दी उसको नहीं बना सकते। ये जब मैं न्यू जर्सी में अमेरिका में जब मैं था उस समय वहां पर जो हमने म्यूजियम बनाया था उस समय यहाँ विजिट किया था, इनसाइड में हमने देखा कि पत्थरों पर इस तरह का काम किया है। ये देखिए ये ऊपर में ये देख के भी ऐसा लगता है कि हम ये मैं पर्सनली, मुझे पता नहीं आप में से कितने आर्टिस्ट है, कागज पर भी ये मैं नहीं बना पाऊंगा, इतना पत्थर में जान इन कारीगरों ने डाली है। सो इट्स व्हाट आवर हेरिटेज, इट्स एन ग्रेटर इंडिया हेरिटेज। भारत के बाहर ये कला पहुंची है तो उसकी कला की ये विशेषता है। तो आप भी अगर कुछ बनना चाहते हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि मेरा भी नाम दुनिया में फैले, तो किसी हेरिटेज को समझने का, उसको अपने अंदर उतारने का, उस कला को अपने अंदर उतारने का प्रयास कीजिए और उसको बेस्ट रूप से जो है दुनिया के सामने रखने का प्रयास कीजिए। ये राम मंदिर का जो आप व्यू देख रहे हैं, इट्स नॉट ओनली एन टेम्पल, इसमें जो हम कहते हैं कि इसमें जो म्यूजियम्स ये बन रहे हैं आगे चल करके, ये हमारे यहाँ का गांधी रिसर्च फाउंडेशन का भी म्यूजियम। सो ये म्यूजियम्स जो हमारी धरोहर को जिंदा रखे हुए हैं, सो इसमें आप अपनी एक्सपर्टीज को अध्ययन करने के लिए बार बार विजिट कीजिए। आप यहाँ जो देख रहे हैं 25,000 स्क्वायर फीट का ये म्यूजियम हमने भारत में हमारे जलगांव शहर में बनाया था। इसको पूरा फिर डिसमेंटल करके हमने इसको फिर अपने जो शिप्स होते हैं, हमारे कंटेनर जो होते हैं, उसके इसमें डाल करके भेज दिया। फिर हम अमेरिका गए और वहां जाकर के फिर से हमने ये पूरा म्यूजियम जो है उसको फिर से ज्वाइन किया था। पहले ही दिन 7,000 लोगों ने यहाँ विजिट किया था। तो मुझे कहने की एक बात, खुशी की बात है कि इस तरह का निर्माण आप कर सकते हैं, मगर आपको हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स और हमारे अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, इसको दोनों को जोड़ करके काम करने का प्रयास करना चाहिए। आप जो ये पत्थरों की मूर्तियां, ये सुंदर मूर्तियां जो देखते हैं, शताब्दियों से इसका जो प्रवास, ये जो सफर चलता आ रहा है, ये सुंदर रूप से निर्माण हुई सारी ये मूर्तियां और ये सभी जो है, तो क्या सोचते हैं आप इसको देख करके? हमेशा इट्स नॉट अ पर्स, ये सिर्फ जो है ना एक कलाकार की कला। ये क्या है, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां, इट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ हार्ट। मैंने जो कहा था ना, प्योर सोल है, रात दिन उसमें वो बिजी है, वो निर्माण करने का, उत्कृष्टतम निर्माण करने का वो प्रयास कर रहा है। सो आर्ट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ हार्ट एंड द आर्किटेक्चर इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ कम्युनिटीज हार्ट। तो इस तरह से जब समाज सुंदर रहता है, समाज मन सुंदर रहता है, जो हमारे इस कलाकारों को, हमारी नई जनरेशन्स को जो है ना सपोर्ट कीजिए इसके लिए। हम तो उनको जो है सिर्फ और सिर्फ मशीन्स बनाना चाहते हैं, रोबोट्स बनाना चाहते हैं। ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा बड़ी पोस्ट चाहिए, ये चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, इसमें हमने उनको व्यस्त करके रखा है। वो सारी दुनिया की अपनी संवेदनशीलता को, जिसको हम कहते हैं ना, उससे धीरे धीरे कहीं टूटता जा रहा है। अब जब आप चाहते हैं ये सुंदरता देखे, तो समाज मन सुंदर होना चाहिए। सो बी द ब्यूटीफुल हार्ट फर्स्ट। अपने मन को सुंदर रखिए, जब जाकर के इस विरासत को आप सुंदर रूप से देख पाएंगे। इस तरह का प्रयास हमारे गोवा के शिल्पलोका स्टूडियो में गुड़ीधर पुट्टास्वामी जैसे लोगों ने किया है। आप अगर कभी विजिट करेंगे तो देखेंगे उस समय की कला को, हमारी 12वीं-13वीं शताब्दी की कला को उनके यहाँ के स्टूडियोज में आप ये देख सकते हैं। ये भी उन लोगों ने बनाया है। ये वुड वर्क उन्होंने किया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सैंडवुड वर्क। चंदन की लकड़ियों में इस तरह का एक सुंदरतम निर्माण करने का प्रयास उन्होंने यहाँ किया है। हम भी प्रयास करते रहे जितना भी हमसे पॉसिबल हुआ, और इसकी जो भी हमें मटेरियल मिले, जो भी हमारे लिटरेचर सोर्सेस मिले, हम हमारी गवर्नमेंट की तरफ सौंपने का या फिर उसका स्टडी करने का, दुनिया के सामने रखने का। आर्काइवल हेरिटेज, मैन्युस्क्रिप्ट्स, और इसको भी हम स्टडी करें। हमारे पुरखों से ये चलती आ रही परंपरा है, और ऐसे लोग हैं जो आज भी हमें दिल से सिखाने के लिए तैयार है। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट हम सिर्फ पैसे देकर के ही, हजारों रुपए देकर के ही सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमने हेरिटेज फाउंडेशन की जो नींव रखी थी, इसीलिए रखी थी कि कम से कम पैसे में या फिर फ्री, 1 साल का कोर्स भी है, टोटली फ्री है,
तो पीजी डिप्लोमा जो हमारे पास है टोटल पे 1 रुपए फीस नहीं है। तो ये हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे जो लोग जिन्होंने ये एक्सपर्टीज रखी है, ये आज भी हमें बिल्कुल ऐसा खुशी के साथ सिखाने के लिए तैयार है। प्लीज कम फॉरवर्ड टू लर्न दीज थिंग्स। ये सीखने का प्रयास कीजिए, जब जाकर के हम इस सुंदरता को निर्माण कर सकेंगे, इस सुंदरता को हम बचा सकेंगे। तो इस तरह से कई सारे स्कॉलर्स है, ये हमारे पद्मश्री डॉक्टर युमा पठान, या फिर हमारे जो जिनको डिलीट प्राप्त हुआ, हमारे डॉक्टर प्रभाकर मांडे, साहित्य ज्ञानपीठ अवार्ड जिन्हें प्राप्त हुआ, तिवारी जी, ऐसे कई सारे लोग हमारे पास आए। और हमारे देश में इस तरह की विरासत कई जगह है, जैसे मैंने बताया, ट्रेजर्स आर देयर, मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेजर्स आर देयर। आप भारत के किसी भी कोने में जाइए, इस तरह का ट्रेजर आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ साथ हमारी नेचर की ब्यूटी को भी जरूर देखिए। ये कुदरत की सुंदरता, ये हमारे हिमालय की सुंदरता है, ये हमारे यहाँ का वेस्टर्न घाट जो है उसकी सुंदरता है, और ये हमारे सातारा डिस्ट्रिक्ट का कास पठार, उसके बाद हमारे यहाँ के नर्मदा के भेड़ा घाट का ये दृश्य, जहाँ पर हम ये सुंदरता देखते हैं, मार्बल का पूरा मार्बल गार्डन जिसको मैं कहता हूँ। तो ये संगमरमर की यहाँ पहाड़े हम जब देखते हैं, पहाड़ जब देखते हैं, तो नर्मदा के इसमें इतनी सुंदरता हम देखते हैं। सो इस तरह के ये भी हमारे महाबलेश्वर का व्यू आप देख रहे हैं। सो ये कुदरत की सुंदरता, लोनार का सरोवर, मगर हमने इन तालाबों को, इस कुदरत की सुंदरता को बड़े बड़े ऐसे मशीनरीज के साथ में मिलकर के हर तरफ नष्ट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। खदान माफिया हो चाहे सैंड माफिया, इसका कारण हम लोग है, क्योंकि हमारी ग्रीड्स जो है ना, उसके लिए ये लोग ये सब जो है नष्ट करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। सो ये चेन्नई एक्सप्रेस की वजह से आपको ये दूसरा वाटरफॉल को पता चला, मगर देखिए हमारे यहाँ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में मुरुडेश्वर जैसे प्लेसेस पर कितनी सुंदरता है, लोगों को पता भी नहीं है कि ये इस तरह के ब्यूटीफुल प्लेसेस है। एक फिल्म की वजह से हमें ये पता चला, मगर ये इतना सैकड़ों की तादाद में इस तरह के व्यू हमारे किसी फिल्मों में नहीं आए हैं, आपके आजू बाजू में। मगर वहां जाकर के गंदगी मत कीजिए कृपा करके, नहीं गए तो अच्छा, बट अगर जाते हैं तो सिर्फ आनंद लीजिए, वहां कचरा डाल के फेंक के ये करते हल्लड़ हुल्लड़ मचा के सब इसको नुकसान मत पहुंचाइए, आनंद जरूर ले, समझे। और हमारी इस विरासत से जो है हम लोग जितना भी पॉसिबल हो सकता है, क्षमा कीजिए, इस तरह के कई सारे प्लेसेस है, काजीरंगा हो, हमारे गोकर्णा का घाट हो, कप्पड़ बीच केरला का हो, लाइट हाउस कोवलम का हो, कितनी कितनी सुंदरता हम कहे, मैसूर का वृंदावन गार्डन हो, हमारे डेजर्ट में भी थार का हो, फिर हमारे यहाँ का व्हाइट रन हो, ये इसको नेचर एंड आर्टिफिशियल को मिला करके हमारे सुदर्शन पटनायक जी ने इस तरह की सुंदरता को निर्माण करने का प्रयास किया। हमारे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में इस तरह की कलाओं को एक नए आयाम देने का प्रयास निरंतर किया गया। कैलीग्राफी आर्ट है हमारे पास में, मेहंदी की सुंदरता हर हाथों में है, हमारी हर बहन, हमारी हर माँ के हाथों में ये कला है। ये थ्रेडिंग का वर्क जो सॉरी क्लॉथ के ऊपर का ये जो वर्क उन्होंने किया, तो कितनी कितनी कलाओं के हम नाम ले, रंगोली निकालने का ये वर्क है, इतनी सुंदरता जो हमारे यहाँ पर जो बनाने का प्रयास किया गया है। तो आपके पास भी अपने घर के दरवाजे के सामने जो रंगोली निकालते हो, वो इतनी सुंदर हम बना सकते हैं क्या? प्रयास कीजिए, देखिए कि हर आपका टेंशन, हर आपका फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूर हो जाएगा अगर आप एक छोटी सी सुंदर चीज को निर्माण करने का अगर प्रयास करेंगे। देखिए सिंपल पड़ी हुई लोहे की सलाखें और धागों को बना करके ये गांधी का स्टैचू बनाया। देखिए सिर्फ लोहे की सलाखें है और थ्रेड्स है, और क्या है सामने, सिर्फ एक ला करके एक चरखा रख दिया है। हमारे यहाँ के पब्लिक गार्डन में इस तरह का प्रयोग हमने किया। सो इस तरह से आप चाहे पेंटिंग बनाइए, चाहे आप जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स का वर्क कीजिए, जो भी आप कर सकते हो, सुंदर हैंडराइटिंग लिखने का प्रयास कीजिए, एनीथिंग। देखिए गोल्डन कुरान है, तो इस तरह की इतनी सुंदर स्क्रिप्ट्स को आप लिख सकते हैं, हस्ताक्षर की सुंदरता को आप देख सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा था, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में, इन हमारे लिटरेरी सोर्सेस में हमारे हेरिटेज को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। हमारे आयुर्वेद के मैन्युस्क्रिप्ट जो है, इंसान का जीवन अच्छा बनाने का प्रयास इसमें किया गया है। सो स्टडी दीज ऑल थिंग्स, जितना अच्छा प्रयास हो सकता है कीजिए, और आपके आजू बाजू में इस तरह का जो भी मिला दुनिया के सामने रखने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल सिंपल सादे शब्दों में। और चले लोगों के साथ बात करें, प्रोग्राम्स में हो या फिर स्कूलों में, कॉलेज में, अपने मोहल्ले में, गली में, जिसके साथ चलते चलते बात करें, ताकि इस विरासत को जो है हम एक दूसरे के साथ शेयर करने का प्रयास करें। अगर आप डिजिटल के मास्टर है, अगर आप डिजिटल के एक्सपर्ट है, तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा आज मुझे बड़ी खुशी होती है। हमारे बच्चे जहां भी जाते हैं फोटो निकालते हैं, फेसबुक में अपलोड करते हैं।
सिर्फ एक ही बात मैं हाथ जोड़कर इतना ही बताना चाहूंगा, वेरी हम्बली, आप अपने जो ये लेते हैं ना जिसको हम कहते हैं सेल्फी, तो सेल्फी जरूर लीजिए, निकालना नहीं, एक दो जरूर निकालना, 4 निकालना, मगर उसके साथ साथ उस मॉन्यूमेंट के, उस स्कल्पचर के भी थोड़े से अच्छे फोटोग्राफ जरूर निकालिए और वो भी डालिए, ताकि ये ज्ञान का भंडार जो है ना इसी तरह से निरंतर बढ़ता रहे। सो हमारे इसमें एक सुंदर ये है ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, तो ज्ञान की गंगा को भी हम इस सोशल मीडिया के द्वारा बहा सकते हैं। सो ट्रेजर्स गैलरीज इस तरह की है। सो मैंने भी अपने जीवन में इस तरह का प्रयास किया, अपनी किताबों के द्वारा लिखने का प्रयास किया, दुनिया के सामने लाने का छोटा सा प्रयास मैंने किया, एक ब्रिज बनने का प्रयास किया और करता रहा हूं, और आप सबके आशीर्वाद के साथ में हम आगे जो है इस तरह का प्रयास निरंतर करते रहेंगे। और आपको अगर ऐसा लगता है इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, अभी तक तो मैंने बताया, बट टिल देन इसमें कई सारे पोस्ट होते हैं, डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर्स, फाइनेंस ऑफिसर्स, क्यूरेटर्स, म्यूजियम्स एंड हेरिटेज प्लेसेस, सभी जगह पर इस तरह की पोस्ट होती है। और इसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफिसर्स, एजुकेशन ऑफिसर्स, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, सोवेनियर शॉप मैनेजर्स, एग्जिबिट डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आप अभी ये सामने आप जो देख रहे हैं ना, इसके लिए हिस्ट्री का डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट ये रहने का कोई जरूरत नहीं है। सोवेनियर शॉप मैनेजर बनने के लिए, दुकान का प्रमुख बनने के लिए किसने कहा है कि डिग्री रहना, आप में वो स्किल होना चाहिए हर चीज को बेच के दिखाने का। तो जरूर आइए, मोस्ट वेलकम। तो हेरिटेज प्लेस पे हाँ सोवेनियर शॉप लगा सकते हैं। हमारे यहाँ अजिंता में जब एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही आपको 20, 25, 40 दुकानें दिखाई देगी। हमारे किसी भी मंदिर को जब हम विजिट करते हैं, किसी भी मस्जिद दरगाह को जाते हैं, तो बाहर सैकड़ों दुकानें रहते हैं, मगर बेची उसी की चीज जाती है जिसको पता है कैसे बेचना है। सो ये एक्सपर्टीज है आपकी खुद की। एग्जिबिट डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर के लिए आपको कंप्यूटर का मास्टर अगर है आप कंप्यूटर में, तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि हम जो जिसको कहते हैं वर्चुअल म्यूजियम्स बनाना होता है, या फिर हमारे हेरिटेज प्लेसेस का वर्चुअल टूर्स करना होता है, तो इतिहास का सिर्फ नॉलेज होके फायदा नहीं है, वो तो होना जरूरी है, बट उसके साथ साथ हमें टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज, उसके एक्सपर्ट्स, सो एक साथ मिलकर के हम ये कर सकते हैं। सो आज इन पैंडेमिक सिचुएशन में ये बात बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर मुझे पता नहीं होता गूगल मीट को कैसे यूज करना है, अगर हमारे पास ये प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, तो हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं वो बात आप तक कभी नहीं पहुंच पाती। और आप जितनी साइट्स को अभी विजिट किए हैं वर्चुअल के द्वारा, शायद अपने लाइफ में कभी वहां पर पहुंच सकते, जा सकते। सो मैं पिछले 13 सालों से प्रयास कर रहा हूं, तो उतना जो किया वो मैंने दिखाने का प्रयास किया, मगर इसके लिए अभी कई साल मुझे लगेंगे कि मैं इसको ठीक से समझ पाऊं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनने के लिए आपके पास में जो है, अगर लाइब्रेरी का आपके पास बिलीव है, यमलीब है, तो भी आप इसमें आ सकते हैं। और छोटी छोटी लाइब्रेरियां, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा सभी बच्चों को कि अगर आपके पास आपको अगर पैशन है किताबों का, तो सब्जेक्ट वाइज किताबों का फोल्डर जरूर बनाइए। मैंने अपना यहाँ ऐसा प्रयास किया है, ताकि अगर मुझे कोई मांगता है तो मैं तुरंत दे भी सकता हूँ। और हमारे यहाँ ऑनलाइन की दुनिया में लाखों की तादाद में किताबें अवेलेबल है, मगर उसको सर्विस प्रोवाइडर्स चाहिए। सो हाउ इट्स, तो जैसे हम कहते हैं ना गाइड, जैसे हेरिटेज में जाते हैं, म्यूजियम में जाते हैं, तो गाइड चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, या कई सारे फोटोग्राफर्स, कारपेंटर चाहिए, तो ये सभी इसके लिए हमारे पास में सर्विस प्रोवाइडिंग चाहिए। मैं लास्ट में उसका एक ये दिखाऊंगा। ये म्यूजियम की जो दुनिया आप देख रहे हैं ना, पत्थरों की ये दुनिया है, मगर म्यूजियम में इतने सुंदर रूप से रखी है। कितने कितने सैंपल्स है साहब, ये देखिए कि इसके लिए तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, जियोलॉजिस्ट, ये हमारे एडमिरल केसी पांडे साहब ने किया है, जो एक नेवी का आदमी, हमारे नौदल का हमारा एक सिपाही, और जिस सिपाही ने पैशन था उसके अंदर, सिर्फ सिन्नर का म्यूजियम नहीं बनाया, अब उन्होंने शिरडी का म्यूजियम बनाया है, अब वो दिल्ली में म्यूजियम बनाने जा रहे हैं। सो ये क्या है, उस विषय को समझ सके, और नेवी का आदमी होकर के, इतना ये होकर के भी ये वर्क कर रहे हैं। सो इसको जो है ना, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये हमारे भारत का पहला एजुकेशन हेरिटेज म्यूजियम है, जिस म्यूजियम कमेटी का मैं भी प्रेसिडेंट हूँ। मगर खुशी की बात है, 100 साल पहले की इमारत, उसको उसी रूप से हम देखते हैं कि हमारे किलों को, मंदिरों को रिस्टोरेशन या कंजर्वेशन वर्क होता है, तो इस तरह से होता है कि वो इतना बुरे लगते, खराब लगते हैं, मगर 100 साल पहले की इमारत को हमने उसी तरह से निर्माण करने का, फिर से यानी उसको रिस्टोरेशन करने का प्रयास किया। 2 नेशनल अवार्ड अभी तक इसको मिले हैं, अभी इसका इनॉग्रेशन भी होना बाकी है, फिर भी अवार्ड मिले। तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मूल रूप से हमारा नेचुरलिटी जो है, उसको उसी तरह से निर्माण करने का प्रयास हमारे आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स और हम लोग इतिहास के मिल करके ये कर सकते हैं। सो देयर आर दी हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप ये बुद्धवनम का, हमारे नागार्जुन सागर का जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थपति शिल्पियों ने जो काम किया है, डिजाइन प्लानिंग से लेकर के
इतना ब्यूटीफुल वर्क यहाँ किया है। ये म्यूजियम का एक उसके अंदर जो नया अभी म्यूजियम बनने जा रहा है, जिसका मैंने एक कंसेप्ट नोट तैयार किया था, उसको मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। सो इस तरह से आप भी अगर किसी भी एक प्लेस के बारे में, आपके आजू बाजू में अगर एक अच्छा मंदिर है, तो उस मंदिर का पूरा जानकारी अगर आप अच्छे से रखते हैं, स्कूलों में जाइए, कॉलेज में जाइए, बच्चों के साथ बात कीजिए। आपको तो मैं ये कहूंगा कि हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग इतने अच्छे हैं कि आपको आपके टॉक के लिए, आपके लेक्चर्स के लिए आपको 1,000 रुपए, 2,000 रुपए ये भी मानधन देते हैं। सो ये क्या है, तो आप अगर किसी भी नौकरी कोई भी कीजिए, कोई बात नहीं, हेरिटेज में आस्था अगर है आपको, अगर हमारी इस विरासत में आस्था है किसी भी टॉपिक के बारे में, बट पहले ऑलराउंड अच्छे से मास्टर बनने का प्रयास कीजिए, अच्छा नॉलेज लेने का प्रयास कीजिए, और जाकर के न्यू जनरेशन के सामने उसे ठीक से रखने का प्रयास कीजिए, ताकि वो भी इसका आनंद ले सके, समझ सके और आस्था निर्माण हो सके। सो इस तरह से हम अपनी कुदरत को बचाने का जब प्रयास करते हैं, तो सारे फील्ड के लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। ये हमारी आर्मी के हमारे कर्नल सोमवीर मुंडलिया साहब है, हमारे यहाँ के कमिश्नर जो थे उस समय के, वो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो भी हमारे साथ है। तो इस तरह से हम मिलके ये काम कर सकते हैं। अभी अभी कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट भी बनाए, और अभी ये इसको प्रमोट कर रही है, साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, R&D रिसर्च वर्क हो रहा है। सो मोस्ट वेलकम इन दिस फील्ड। ये एक अलग दुनिया है। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो तो हेरिटेज में जरूर जुड़ जाइए, और इस तरह का होलिस्टिक अर्बन हेरिटेज और लेजिस्लेशंस और ये सभी तरह का हम प्रयास करते रहेंगे। आर्किटेक्ट, कंजर्वेशन इंजीनियर, सर्वेयर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्लानर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, मटेरियल सप्लायर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, ओनर, NGOs, गवर्नमेंट एजेंसीज, कंजर्वेशन, क्राफ्ट्समैन, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, सब तरह के फील्ड के लोग आकर के इस विरासत को जो है एक फिर से दुनिया के सामने बहुत अच्छा हम जो है ले जा सकते हैं। हमारी देश में इसकी कमी नहीं है, लाखों की तादाद में हमारे यहाँ पर ऐसे मॉन्यूमेंट्स और मंदिर और मूर्तियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आप न्यू जनरेशन, अगर आप बच्चे, मेरे जैसा कोई अकेला आदमी या मेरे जैसे 100 लोग 100 साल भी मिलकर प्रयास करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मगर आपके जैसी अगर एक जनरेशन अगर इसमें आ जाती है, खुशी के साथ अगर आगे बढ़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है हम इस हेरिटेज साइकिल को ठीक से समझ सकते हैं। सो बाय अंडरस्टैंडिंग दे वैल्यू इट, द पब्लिक वैल्यू इट, बाय वैल्यूइंग दे विल वांट टू केयर फॉर इट, एंड बाय केयरिंग इट विल हेल्प पीपल एंजॉय इट। सो एंजॉय भी जरूर कीजिए, आनंद ले सकते हैं। एंड फ्रॉम एंजॉइंग कम्स अ थर्स्ट टू अंडरस्टैंड, फिर से हम उसको जो है समझने का प्रयास करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल। सभी बच्चों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, दिस इज आवर ग्रेट इंडियन हेरिटेज, लेट अस कम्स टुगेदर टू प्रिजर्व इट, फॉर टू इनकलकेट एटलीस्ट वन आर्ट अमॉन्ग द 64 कलाओं में से एटलीस्ट एक आर्ट को हम अपने अंदर उतारने का प्रयास करेंगे, और न्यू जनरेशन को सिखाएंगे प्यार के साथ, क्योंकि हमें ये प्यार की गंगा जो है उसको आगे बढ़ाना है। सो ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा को भी इस तरह से जो है हम हेरिटेज के द्वारा आगे ले जाने का प्रयास करते रहेंगे। मेरी अगर कुछ गलतियां हुई हो तो उसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। मैं भी एक इतिहास का विद्यार्थी हूं, समझने का प्रयास करता रहा। तो अगर आपको कुछ सवाल है, मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। सर बहुत बढ़िया। आई नाउ रिक्वेस्ट आवर स्टूडेंट्स टू वन बाय वन आस्क क्वेश्चंस। कुछ प्रश्न होंगे आपके तो सर उसका जवाब देंगे, बट बारी बारी से आप पूछिएगा। यस, एनीबडी? प्लीज रेज योर हैंड। यस, शिवानागी रेड्डी सर। यस सर। Can I talk? Yes sir, please. Sir, Most please. welcome. Thank you so much for being here, sir. No. It is a great pleasure, because Bhujangrao ji, though he looks so small, but his entire mind and body is filled with knowledge, and the way in which he presents, the flow is totally like एक नया Nayagara है उनका प्रसंग. And I am not praising him because I used to enjoy his lectures, that the articulation that he shows is very interesting, as if he is giving instructions to the people with various levels of understanding. And then coming to this point, it is more appropriate to speak on what we call preservation of heritage on World Environmental Day, because we have two types. Absolutely. One is natural heritage and man-made heritage, and Bhujangrao ji has given a wonderful talk right from selecting prehistoric painting, that शिलायुग का चित्रकला से आधुनिक चित्रकला तक, वास्तु शिल्प मूर्ति कला तक कितना
Oh, right from Ajanta se Vastu, or then he moved to Chalukya, Gujjara Pratihara, then Hoysala, whatnot, Vijayanagara. Then again he came to medieval period, even princely states, defense architecture, religious architecture, secular architecture, whatnot. He has covered. He has left no stone unturned as per the topic of his speech is concerned. And at the end, he did justice by giving ample information on nature, its vicissitudes, and various manifestations of the nature, and our responsibility whenever we are on the lap of the mother nature, we have to preserve it for posterity, not to spoil, not to be factor of any misuse of the natural heritage or man-made heritage. Because one thing I want to underline before closing my talk is that America, yes, it is one of the most powerful continent and country, USA, but it has only 450 years of heritage. But we, the Indian, and again the four great riverine civilizations, Mesopotamia, Egypt, China, and Indus, we have great hoary past of at least with a long line of continuity of 5,000 years. In such a situation, we are bestowed, we are boon, we are what we call is blessed with both the heritages, nature and man-made. So I take this opportunity. I do not have any question, because if I don't understand, I have to ask him some questions for clarity. No, it is well, what we call is, the fist is open. The fist is open before all of us. No questions, nothing except complimenting him for his wonderful, wonderful, mellifluous talk that really flew like a water cascade ride. He has shown many number of cascades. Similarly, it is also one among them. I really appreciate the organizers and Professor Bhujangrao ji for his wonderful enlightening talk within 1 hour of span of time. Like it really went on like Konkan Railway, so fast, 170 kilometer speed. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir, for joining. Thank our you. program. Really, Thanks really. a lot, sir. Hello, sir. And Thank you, thank sir. you, गुरु शिष्य, आप दोनों को, गुरु शिष्यों को नमस्कार. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. मैं ये धन्यवाद No. बाद में कहने वाली थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारे स्टूडेंट जरा उनके जो मन में है, एंड जैसे अभी सर ने बिल्कुल सही कहा कि सर आप रुके नहीं, यही इच्छा थी कि आप बोलते जाए. बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर सर. Before I say anything else, I'll request our students if they have anything to say. Yes, ma'am. Please raise your hands one by one and ask, please. शाहजहान, शाहजहान शेख सर, साहिल जी. यस सर. हाँ, नमस्ते सर जी. सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से आपने हमें यूं समझिए कि भारत दर्शन करवाया. इतने कम टाइम में, 1 घंटे में शायद ही कोई हमें भारत दर्शन करवाता. दूसरी बात तो ये है कि हाँ, भारत दर्शन ही करवाया आपने हमें, प्राचीन से लेकर आधुनिक तक. अब ये जो इस वक्त की सिचुएशन चल रही है, पेंडेमिक पीरियड है, पिछले 2 साल से हमारे सबसे मुश्किल में अगर कोई इंडस्ट्री आई तो वो है टूरिज्म. तो टूरिज्म के ऐसे बहुत सारे लाखों लोग इसके अंदर बेकार हो गए हैं. तो मुझे एक सवाल ये है कि अब ये टूरिस्ट ये दोबारा अपनी पटरी पे आने के लिए तो और टाइम लगेगा. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी सोसाइटी से, कि आप गवर्नमेंट से कुछ इस तरह से लेटर लिखिए कि भाई ये टूरिस्ट लोगों का भी कुछ ख्याल कीजिए. जैसे अनलॉक हो रहा है, अब दूसरे दुकानें चल रहे हैं, तो टूरिस्ट लोगों ने क्या किया है, एक तो उनके भी अनलॉक की कोई ऐसी प्लानिंग कीजिए कि भाई जैसे हम कोई लेनी देखने जा रहे हैं तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और बाकी की चीजों का ध्यान रखते हुए ये टूरिस्ट हम आगे बढ़ाते चले, ताकि वो लोग भी बच जाए. और दूसरा ये कि अगर किसी का जॉब टूरिस्ट लाइन का कोई चले जाता है तो उसके लिए साइमल्टेनियस कौन सी जॉब अवेलेबल हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताए तो बहुत अच्छा होगा. थैंक यू, धन्यवाद सर. ये बड़ी अच्छी बात है कि अपॉर्चुनिटीज फॉर द वर्क हमारे यहाँ पे. अभी आपने बहुत अच्छा कहा कि फिजिकल केस में जब एक हमेशा हम ऐसा कहते हैं कि जब ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा हमारे लिए खोल देता है. तो हमें ये समझना है कि वो दूसरा दरवाजा कौन सा है.
तो यहाँ पे जो टूरिज्म के इसमें आपने कहा कि ये बंद है, केओस बंद है। अभी कुछ कल का अगर आप ये देखे होंगे हमारे यहाँ पे कल्चरल सेक्रेटरिएट का एक लेटर जो ये किया गया है, तो आपने जैसे कहा कि उसी तरह से टूरिस्ट गाइड्स एंड ऑपरेटर्स और ये सभी लोग मिलकर के हर जगह को जो है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर गूगल कल्चर आर्ट एंड कल्चर प्लेटफॉर्म जो है उस पर लाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत की पिछले 1 सालों से ही, अभी तो 3रा बैच शुरुआत हुआ है। सो ये प्रयास है कि इस सभी जगहों को इस तरह से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब आप समझिए कि अब जब मैं म्यूजियम में जैसे आपको जानकारी देता हूं तो ऑनलाइन में आप जुड़े हैं, बट मैं फिजिकली म्यूजियम में रहूंगा और वहां पे एक एक चीज के सामने आपको ये जानकारी दूंगा। तो ये इस तरह का एक नया विजन जो है अभी शुरुआत हुआ है। और जैसे आपने कहा कि टूरिस्ट में अगर टूरिज्म के इसमें अगर जॉब चला जाता है किसी एक का, तो मैंने जैसे कहा था थोड़ा सा टेक्नो सेवी बनना है, नई जनरेशन के साथ चलना है। तो आप जो काम फिजिकल में करते थे वही वर्चुअल में आप कर सकते हैं, इसको भी आप समझिए। अब हमेशा ये होता है कि मैं आप खुद के घर में देखिए या मैं मेरे घर में देखता हूँ, कोरोना जैसे ही शुरू हुआ, लॉकडाउन हो गया, तो मेरी बीबी जो कभी मोबाइल में यूट्यूब नहीं देखती थी वो यूट्यूब गर्ल बन गई। यूट्यूब में देख करके वो अलग अलग डिशेस बनाना चाहती थी। तो यूट्यूब डिशेस कैसे बने? तो जिन लोगों में ये कला है बनाने की, उन लोगों ने वो रख करके वीडियो बनाए और उन्होंने यूट्यूब में डाल दिया, इसलिए हम लोग खा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हर बात एक दूसरे पर निर्भर है। हमको सिर्फ थोड़ा सा टेक्निक्स का साथ लेकर के, या नहीं है तो आजू बाजू के ऐसे लोग जिनको ये नॉलेज है उनको साथ लेकर के हम इसको दुनिया के साथ, इसलिए मैंने बीच में एक बात कही थी कि एक नए तरीके से बेस्ट प्रेजेंटेशन होना भी बहुत आवश्यक है। तो मुझे ऐसा लगता है टूरिज्म के लोगों के लिए भी एक नया फील्ड रहेगा। थोड़ा सा ये मदद लेकर के हम दुनिया के सामने इस तरह से जा सकते हैं। अभी सभी जितनी भी टूरिज्म की कंपनियां हैं, केसरी हो, वीना हो, जो भी, उन लोगों ने भी, अभी मुझे कल ही पाटिल जो है उनका फोन था, मुंबई के जो पाटिल टूर सेंटर, उनका फोन था कि सर क्या हम इस तरह से एक एक जगह को ये करने का प्रयास कर। मैंने कहा जरूर बताइए आप, हमारे जो उधर के टूरिस्ट गाइड्स है हम उनसे बात करेंगे और एक एक जगह पर के एक एक इसको हम जो है आपको इस तरह से दिखाएंगे। जो फीस है उनका गवर्नमेंट ने जो वहां किया है वो ऑनलाइन वाले लोग पेड करेंगे और वो यहाँ पर से उनको दिखा सकेंगे। So we are become a bridge for them only. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Amazing thoughts, sir. Amazing thoughts. Thank you so much for this wonderful session, sir. Thank you, madam. Yes, बच्चों में से किसी को कुछ पूछना है? हमारी न्यू जनरेशन। Yes, रूपाली जी। नमस्कार सर। सर नमस्ते। मेरे पास ओल्ड कॉइन्स है और जॉर्जिया 6 जो ब्रिटिश कॉइन है ना, जो लास्ट एम्पायर कॉइन है वो है, और भी ओल्ड कॉइन, तो मुझे प्रिजर्व करना है और मैं चाहती हूँ कि मेरे कॉलेज को भी और कॉइन्स के बारे में वो और स्टडी करेंगे। मुझे कॉइन्स की कलेक्ट करना बहुत पसंद है। सो नाइस, बहुत ही अच्छा। अगर आपको इस तरह का वर्क अगर करना है तो आप अपने कॉलेज में हम ऑलरेडी प्रमिला मैडम वगैरह जो है हमारे इस वर्क, ये हमारे कोर्स में वो ज्वाइन हुई थी म्यूजियम से रिलेटेड जी। और प्रमिला मैम को पता है जी, प्रमिला मैम की स्टूडेंट हूँ मैं। जी हाँ, जी हाँ। तो मैडम ने भी स्टूडेंट बन के सीखने का प्रयास किया था, इसलिए मैं आज आपके सामने यहाँ पर हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के कोर्सेज को आप कर सकते हैं। हमारे हेरिटेज फाउंडेशन जलगांव के द्वारा 32 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें म्यूजियम मैनेजमेंट या फिर हमारे कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन कैसे करना चाहिए, उसको प्रिजर्व कैसे करना चाहिए। और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए तो ये 7 डेज कोर्स का 500 रुपीज फीस है, बट फॉर द स्टूडेंट्स 1 मंथ का कोर्स 30 आवर्स कोर्स जो है वो सिर्फ 300 रुपीज उसका फीस है। इसके बाद भी अगर कुछ बच्चों के पास अगर पैसे नहीं हैं तब भी हम उनके लिए ये कोर्स जो है उसको चालू रखते हैं। तो इस तरह के अलग अलग सेशंस भी हम रखते हैं, तो आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और जो है सीखने का प्रयास करते रहिए। तो मैं मैडम से भी और हमारी जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट की हेड है तो उनसे भी मैं ये विनती करता हूँ कि हम ऐसे बच्चे जो अपने कॉलेज में हैं, जिनके पास ऐसे हॉबीज है, कॉइन्स कलेक्शन करना हो, मैचेस की डिब्बियों का कलेक्शन करना हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सो इनका भी एक प्लेटफॉर्म आप जरूर बनाइए। हॉबी क्लब, हमारे कॉलेज का अपना अगर हॉबी क्लब हो, इट्स टू गुड। तो ये बच्चे जी सर, भी बना के देंगे।
यस सर, यस, जरूर जरूर। बहुत बढ़िया। Anybody else? Please ask. हेलो हाँ यस, अभिलाष जी कुछ पूछना है? अभिलाषा जी कुछ पूछना है? अभिलाषा जी कुछ पूछना है? नहीं सर। जी ओके ओके ठीक है। हेलो दत्ता आप पूछ रहे थे कुछ? हाँ हाँ सर, मैं दत्ता बोल रहा हूँ वाडिया जी कॉलेज से। जी सर आपने जैसे बताया कि मतलब जो आपने ये अभी स्टार्टिंग जनरेशन है, जो कि फोर्ट हो या कुछ भी अदर्स हो, कि उस पे गंदगी बहुत होती है सर। तो जी मुझे बहुत पसंद है कि मैं अगर कहीं भी जाता हूँ तो मुझे गंदगी वैसे पसंद ही नहीं है, लेकिन जी वहाँ मतलब कहीं भी जाता हूँ तो मेरे को कुछ भी गंदा लगे, मतलब कुछ भी हो, तो मुझे वो क्लीन करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत तो अच्छा, मैं बहुत बढ़िया। जनरेशन के लिए और ऑल स्टूडेंट के लिए भी ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट हो, अगर मस्ती हो, मजाक हो, जो कुछ भी हो, अगर वो ट्रैवल के लिए जाते हैं, टूरिस्ट के लिए जाते हैं, कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, तो प्लीज आपने अभी बताया कि फोटो शेयर कीजिए। और वहाँ का जो नेचर है, वहाँ की हिस्ट्री है, वहाँ के जो अलग अलग मतलब जो अच्छा नेचर है, जो जो यस शेयर कीजिए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो नेचर है दुनिया के सामने लाना चाहिए, और जो अच्छे से अच्छा वो क्लीन रहना चाहिए। तो मुझे भी यस, ऐसे लगता है सर। सही थैंक बात यू है, सर। बहुत अच्छा कहा आपने, ये बहुत अच्छी बात कही। और बच्चों में से कोई ये कहता है तब और ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि आपने इसको समझा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और वैसे हमारे सारे यूथ्स, सारे बच्चे वो एक्चुअली अच्छे होते ही है, बस बात ये होती है कि किसी के साथ जुड़कर काम करने में जो उनको एक थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस, या फिर कोई कुछ कहेगा क्या, या फिर कोई अप्रिशिएट करेगा तो और अच्छा होगा। आजकल हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस तरह का प्रयास बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हमारे आर्कियोलॉजी के ऑफिसर जो है वो फोर्ट्स पर कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों को ले जा करके इस तरह का ये करते हैं, क्लीनिंग वगैरह मिशन करते हैं, ये अच्छी बात है। आप, मैं सिर्फ सभी को इतना ही बताना चाहूंगा, आप जहां रहते हैं, आपके घर के आजू बाजू में, आपके कॉलेज के आजू बाजू में जो भी हेरिटेज प्लेस है, सिर्फ उस एक प्लेस के लिए भी अगर आप इस तरह का काम करेंगे, वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ, एक महीने में एक बार भी जाकर के, अगर आपके मित्र है, फ्रेंड्स है, सर्कल है, तो 10-20 जो भी है मिलकर के अगर जाकर के ये करने का प्रयास करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी। और कुछ बाकी दुनिया को ये करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब लोग इस तरह से अपने आजू बाजू के इसमें अगर ये करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ब्लेम करना जो है वो बंद हो जाएगा, और लोग इसे आस्था के साथ जो है बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने दत्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यस सर, सर थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। यस रियली अप्रिशिएट कि सर आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। मतलब स्टूडेंट इनसे इंस्पायर भी होते हैं सर। बहुत अच्छा सर, बहुत। ये बस आप सबके आशीर्वाद है और आप सबकी प्रेरणा है, हम कर रहे हैं जी। यस मैडम। हा सर, सर आपण म्हणालात तसं फक्त हिस्ट्रीचे स्टुडंट्सला हे तुमच्या कोर्सेसचा फायदा होईल असं नाही, बाकी पण जी यस यस स्ट्रीमचे मुलं हे करू शकतात आणि त्यांना जॉब मध्ये सुद्धा तेवढाच स्कोप आहे, म्हणजे फक्त यस हिस्ट्री वाल्यांनाच नाही तर इतरांना पण, बरोबर ना सर? जी जी बरोबर अगदी. तर कारण ते म्युझियम मॅनेजमेंट सारख्या विषयामध्ये MBA BMA किंवा याचे जे मुलं असतात, आणि त्यानंतर पुन्हा आपल्याकडं आपण डिजिटल किंवा ऑर्ग्युमेंटल रियालिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ऑफ द म्युझियम्स, हे सगळं जेव्हा आपण शिकवतो, सायन्स फील्डचे मुलं पण याच्यामध्ये असतील तर त्यांनाही याचा फायदा होऊ शकतो. आता नुकतंच कालच तिरुपतीच्या याच्यावरनं एक प्रोजेक्टचं आम्हाला हे आलं, 3.5 करोड रुपयाचा तो प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए 3.5 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है डिजिटाइजेशन के लिए, अब डिजिटाइजेशन एक्सपर्ट्स कौन है? हमारे साइंस और इसी के फील्ड के लोग इसमें आ सकते हैं। सो ये कोर्सेज जो है ये सिर्फ किसी एक इतिहास विषय के लिए, बाकी सभी विषय के बच्चे भी जिनको इंटरेस्ट है हमारे हेरिटेज केस में, वो आ सकते हैं। एंड देयर आर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क एंड द जॉब आल्सो। येस सर, गुड सर, थँक्यू सर। मोस्ट सर तो वेलकम कुछ जी। अगर बच्चे हैं ऐसे, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें रिसर्च असिस्टेंट या ऐसे का, बिकॉज अभी ये कर लोग सकते पढ़ हैं, रहे हैं, सो कर अभी सकते हैं, फिर भी जनरली कर जैसे सकते लॉ हैं में इंटर्नशिप वगैरह रहता है ना सर, तो जी। हमारे स्टूडेंट्स को कुछ स्कोप है सर इसमें? देखिए मैं अभी एक प्लेन बताता हूँ, हमारे यहाँ का मुंबई का नेवी का जो म्यूजियम अभी हम बना रहे हैं, इंडियन नेवी वेस्टर्न नेवल कमांड का, तो उसमें हमने जैसे ही आया था तो हमारे सभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन वर्क दे कैन कम।
तो तुरंत लोगों की तरफ से, बच्चों की तरफ से हमें आए कि मैं करना चाहता हूँ। तो इस तरह से अपने यहाँ के पूना के भी इसमें कुछ म्यूजियम्स के वर्क है। मैं अभी जिसमें अलग अलग कमेटियों पर जो काम कर रहा हूँ, उसको छोड़कर भी बाकी लोगों के आते हैं कि सर हमें ऐसा ऐसा बनाना है। अभी कल मुंबई का, जैसे हमारे यहाँ की एक इंजीनियरिंग कॉलेज की फाइनल ईयर की स्टूडेंट, उन्होंने एप्लीकेशन भेजा कि ये मेरा ऐसा सीवी है और मैं ये इसमें इंटरेस्ट रखती हूँ, तो क्या मुझे इसमें कुछ काम मिल सकता है? तो हमने कहा जरूर मिल सकता है, और हमने उनको वो भेज भी दिया। अभी वो काम कर रहे हैं। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ देम, उनकी अपनी जो कुशलता है उसको हम समझ के हम क्या अच्छा कार्य उनको दे सकते हैं। तो मैंने वही कहा था कि हम जो है वो ब्रिज का ही काम कर रहे हैं। सो आपके बच्चे भी अगर चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप उन बच्चों के नाम, उनका एजुकेशन, वो किस में इंटरेस्ट रखते हैं, जरूर बनाइए, एंड मोस्ट वेलकम। हम मिलकर काम करेंगे। जरूर सर, जरूर। सर, शाहजहां सर ने जो टूरिज्म के बारे में पूछा, उससे मुझे याद आ गया, हमारे यहाँ भी एसीसी करके पेपर है, टूरिज्म के ऊपर है जी। तो अपने आपके यहाँ भी ऐसा कुछ कोर्सेज है क्या टूरिज्म के बारे में? अभी जो है हमने मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए कोर्स डिजाइन किया है, टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट नाम से, और उसके 2 सत्र हुए भी है, अभी 3रा होगा। अगर हमारे यहाँ भी हम चाहते हैं तो ये कर सकते हैं जरूर। ओके सर। मैडम प्लीज कंटिन्यू। नहीं, आई वाज आस्किंग एनी स्टूडेंट्स, किसी को कुछ पूछना हो तो और प्लीज पूछ लीजिए। 12। हेलो सर। ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम अभी यहाँ क्लोज करते हैं। हाँ, यस जी। हॅलो सर। यस, बोला सर। माझे नाव स्वामी आकाश शिवशंकर सर। सर, तुमचं आजचं जो सेमिनार मी बघितलं सर, मला इतकंच म्हणावं वाटतं की सर, गुरु ब्रह्म गुरु विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरसाक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर, आज आमची जी संस्कृती विलुप्त होत चाललेली आहे किंवा जे आपण संस्कृती संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत सर, मी सर महाराष्ट्रातला सर, मी 2 फाउंडेशनला अटॅच आहे सर, फाउंडेशन आणि जपू या गड किल्ले या फाउंडेशनच्या अंतर्गत सर मी खूप मोठ्या पद्धतीनं गड संवर्धनाचे कार्य केले सर। त्यामध्ये उस्मानाबाद नदी नळदुर्ग फोर्टचं आम्ही थोडं काम केलेलं आहे सर। पण असे आमची इच्छा की सर, खूप कमी प्रमाणामध्ये विद्यार्थी याला अटॅच आहेत सर, कारण यांना अजून पद्धती म्हणजे मोठ्या पद्धतीने यांना पूर्णपणे जागृत नाही सर की हे संवर्धन केल्यानंतर पुढच्या पिढीला याचं काय महत्व आहे त्यांना माहित नाही। पण सर, मला तुमच्याकडून इतकीच अपेक्षा आहे की सर, आपण असे मला सांगावं की सर, आम्ही त्या स्टुडंटला अट्रॅक्टिव्ह कसं करायचं, ह्या फाउंडेशनच्या अंतर्गत कसं करायचं, त्याबद्दल आपण काय माहिती सांगा। तुम्ही आकाशजी जे काम करताय ते ऑलरेडी इतकं चांगलं काम करताय। याला अट्रॅक्ट करण्यासाठी फक्त आपल्याला एक करावं लागेल की छोटे छोटे प्रोग्राम्स, जसं आता ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म मध्ये हा कार्यक्रम ठेवला म्हणून तुमचा माझा परिचय झाला, असे छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपण ऑर्गनाईज करायला पाहिजेत। आपल्याकडे जेही सण उत्सव येतात कुठली याच्यात, तर त्यावेळेला सुद्धा आपण असे प्रोग्राम्स आयोजित करू शकतो, आणि ज्या लोकांना याच्यामध्ये विशेष कौशल्य आहे त्यांना आपण बोलू शकतो, आणि मग हळूहळू अवेअरनेस आणि इंटरेस्ट जो आहे तो क्रिएट होत जातो। नाहीतर काय होतं की एकदमच एका रात्रीतून कुठला बदल होणार नाही, पण तुम्ही जर हे पुन्हा पुन्हा जर करत राहिलात त्यांच्यासाठी, विशेषतः म्हणजे तुमच्या आजूबाजूच्या कॉलनीतली जी मुलं आहेत त्यांच्यासाठी असेल, तुमच्या कॉलेजची मुलं असतील त्यांच्यासाठी असेल, आणि कॉपरेशन, सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या स्वतःचा इगो बाजूला ठेवावा लागेल। यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे, फॉरगेट युअर इगो, कम टुगेदर। जे कोणी बेस्ट असतील, विनम्र असलं पाहिजे, त्यांच्या समोर आपल्याला विनम्रतेनं जायला हवं, त्या गुरूंकडनं ज्ञान आपण घ्यायला हवं, त्यांना आपण बोलवायला हवं, आणि मग एकमेकाच्या या देवाणघेवाणीतून पुढच्या पिढ्यांना आपोआपच ते चांगलं जे आहे ना ते उमजत जातं आणि ते येत जातात। आपण जसं ग्रुप सांगितलात तसे गड किल्ल्यांच्या संदर्भात आज महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 150 ग्रुप्स आता तयार झालेले आहेत। हे लक्षण कशाचं आहे? हे उलट चांगलं लक्षण आहे। मागच्या 25 वर्षात आम्ही असं बघितलं नाही, म्हणजे बिफोर 2000 आम्ही असं बघितलं नाही की अशा एवढ्या पद्धतीनं काम करणारे ट्रेकर्स आणि, पण मागच्या या 2005च्या नंतरच्या कालखंडामध्ये असे 150 ग्रुप्स तयार झालेले आहेत की जे काम करतायत। कारण आमच्याकडे याच्यासोबत जे म्हणजे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट सोबत जे कोलॅबरेट करतायत,
तर खूपच चांगल्या पद्धतीने हे काम करतायत. आमच्याकडे इथं सुद्धा आमच्या इथे नुसतं एक किल्ल्याचं लेणी मिळाली म्हणून पेपरला बातमी आली आणि आम्ही ते शोधलं त्याच्याबद्दलचं, परंतु लगेच तिकडनं त्या किल्ल्यांच्या ग्रुपच्या संदर्भातले काम करणारे जे तरुण होते त्यांचे फोन आले की सर आम्ही हे टाके वगैरे साफ करायला येऊ का? म्हटलं या, मोस्ट वेलकम. आणि जवळपास म्हणजे 60-70 वयाच्या 7 वर्षापासून 70 वर्षापर्यंतचे लोक त्याच्यामध्ये ते आले. तर सांगायचं असं आहे की आपल्या तरुणांमध्ये ते आहे, फक्त पुन्हा पुन्हा त्यांना राईट म्हणजे योग्य वेळ योग्य प्लॅटफॉर्म मिळाला पाहिजे की हा आपण इथं मी जसं म्हणलं तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला असलेलं जे एखादं मंदिर, एखादा किल्ला, एखादा हेरिटेज प्लेस कुठलंही त्याचं जरी काम करायचं ठरलं सगळ्यांनी आणि ते हेक्टिक नाही झालं पाहिजे, बर्डन नाही आलं पाहिजे. बरेचदा असं होतं की आपल्याला कुठेतरी 100 किलोमीटर जायचंय आणि मग आपल्याला उन्हामध्ये खूप राबायचंय, मग त्याला तयार नाही होत. इझिली सहज पद्धतीनं हळूहळू जर करत गेलं तर मला असं वाटतं हा इंटरेस्ट पण वाढत जाईल आणि खऱ्या अर्थानं हे हेरिटेज वारसा जो आहे तो संवर्धन होईल. धन्यवाद सर, थँक्यू. हॅलो सर, आकाशने जसं म्हटलं की अट्रॅक्शन, आता मी असं म्हणतो की 20 ते 30% अट्रॅक्शन ठीक आहे सर, बट 50 ते 70% आपले जे विद्यार्थी आहेत, लोक आहेत, की त्यांना असं वाटलं पाहिजे की यार आपल्या देशाबद्दल काहीतरी अभिमान वाटला पाहिजे, आपल्या वस्तूंबद्दल अभिमान वाटला पाहिजे. आपले जे पूर्वज होते, आपले जे राजे होते, ते आपल्यासाठी किती कर्तृत्ववान, किती चांगलं कार्य करून ठेवले त्यांनी. मग त्यांच्याच त्या वस्तूंचा, कार्यांचा, जे फोर्ट असो, आपल्या भारतामध्ये वेगवेगळे आता मकबर असो, कोणत्या अजिंठा वेरूळ असो, ते असं अभिमान असला पाहिजे सर आपल्याला. तर अभिमानाशिवाय आपण काही करू शकत नाही. आपल्या मनात जर ते जिद्द असेल किंवा ते व्यवस्थित आपण ते तसाच वारसा आपण पुढे चालवला पाहिजे. बाहेरचे जे फॉरेस्ट लोक असतात ते भारतात आल्याच्या नंतर जे बघून किती खुश होतात, त्यांना किती चांगलं वाटतं. मग ते असंच चांगलं वाटण्यासाठी ह्याचा आधार असाच पुढे राहण्यासाठी चांगला वाटलं पाहिजे. 2-3 महिने ते लोक इथं राहतात, अभ्यास करतात. मी स्प्रिंगचं उदाहरण सांगितलं, 50 वर्ष सातत्याने एक माणूस अमेरिकेतनं आमच्या इथे येतो, अभ्यास करतो आणि 7 खंड प्रकाशित करतो. आणि आम्हाला आमच्या शेजारच्या पारोळा किल्ल्याबद्दल जर कोणी माहिती विचारली किंवा कुठेही जिथं कुठं राहत असाल, आमच्या आजूबाजूच्या एखाद्या ठिकाणाबद्दल जर माहिती विचारली तर एक म्हणजे 10 मिनिटं सुद्धा त्याच्यावरती नीट सांगता येणार नाही अशा अवस्था असते. याचं कारण त्याचं मी जे म्हणलं ना की आपल्याला आवड आहे तर सवड मिळते, सवड असेल तर मग तिथं गेलं पाहिजे, बोललं पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाचं या सगळ्यामध्ये इगो बाजूला ठेवा, कारण शिकण्यासाठी, चांगलं मिळवण्यासाठी इगो बाजूला ठेवा. आणि या साधनांचा आपल्या लायब्ररीत, आजूबाजूला आपल्या महाविद्यालयाच्या, आपल्या कॉलेजच्या लायब्ररीत थोडासा वेळ द्या जरूर. तिथली पुस्तकं चाळून बघा, अभ्यास करा. नसतील तर शिक्षकांना सांगा की याच्यावरचं पुस्तक मिळेल का कुठं, ते तुम्हाला सांगतील. आणि ऑनलाईन मध्ये मी जसं म्हणलं शेकडो लाखो पुस्तकं आहेत, फक्त वेळ त्याच्यासाठी स्पेंड करा, तर मला असं वाटतं की नक्कीच चांगलं जे आहे ना ते आपल्यामध्ये येऊ शकेल. सर एकच लास्ट विचारायचं होतं, आपण जळगाव आकाशवाणीवरून जे भाषण देणार आहात शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त, पण आता माझ्यासारखे असे बरेच जण असतील ज्यांच्याकडे रेडिओच नाहीये, तर मोबाईलमध्ये रेडिओचा ऍप मिळतो, तो डाउनलोड करायचा. रेडिओचा ऍप आहे आणि त्याच्यावरती सगळे कुठलेही चॅनल्स ऐकता येतात. फक्त टच केला त्याला की त्याला ते फ्रिक्वेन्सी वगैरे ते पण करायची गरज नाही. त्याच्यात आता नावाची लिस्टच आहे, जळगाव आकाशवाणी किंवा कुठलं, नुसतं त्याच्यावरती टच केला की 5:30 वाजता तो कार्यक्रम सुरू होतो. तुम्ही 5:30ला टच केला की प्रोग्राम ऑटोमॅटिकली सुरू होऊन जातो. बाकी काहीच करायची गरज नाही. ओके सर, देन नो प्रॉब्लेम. पण युट्यूबवर पण तुम्ही टाकणार आहात का ते भाषण? हा, ते युट्यूबवरती, ते जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय जे आहे कलेक्टर ऑफिस कडनं ते युट्यूबवरती टाकतील. ओके ओके सर, थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. आणखी कोण आहे का विचारणारा? इज देयर एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आस्क समथिंग? हेलो सर, मेरा यस, हाँ, एक प्रश्न मेरा छोटा सा ये था कि इस वक्त स्वयं प्लेटफॉर्म के जरिए से बहुत सारा ऑनलाइन एजुकेशन हमारे स्टूडेंट और बहुत सारे लोग ले रहे हैं, तो आपका कोई डेवलप किया हुआ कोर्स है क्या बोबड़े सर, कि जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं? 3 महीने का, 4 महीने का, ऐसा कोई कोर्स है क्या आपका डेवलप किया हुआ? तो अभी नहीं है, 1 महीने का है, 1 साल का है. तो 1 साल का अभी हमारा अगस्त में लॉन्च होगा, तो उसका लिंक वगैरह हमारे ग्रुप्स में आ जाएंगे, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं. ओके 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 सर. यस, ओके. अच्छा, कुछ चीजें सर मुझे आपसे एक ऐसे बोलना था कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हम टीचर्स के लिए भी आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर कोई ग्रुप की लिंक है या टेलीग्राम की लिंक है, तो अगर आप हमें दे सकते तो इफ वी कैन शेयर इट विद आवर स्टूडेंट्स,
तो वो एक बहुत अच्छा होगा। एंड फोर्थ कमिंग आपके जितने भी आने वाले कार्यक्रम है या लेक्चर्स है, जैसे लेक्चर सीरीज भी हो या अगर छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे हमने भी की थी, जैसे जापानीज लैंग्वेज की थी, कैलीग्राफी की थी, म्यूजियोलॉजी की है, अभी इस्लामिक आर्किटेक्चर का है, या जो भी है, अगर आप हमें बताते जाएं या वो ग्रुप में वंस आर स्टूडेंट्स ज्वाइन, तो वो एक बहुत अच्छा होगा कि स्टूडेंट्स को काफी समझ में आएगा कि लेटेस्ट क्या क्या चल रहा है। तो ये एक आपसे रिक्वेस्ट थी। एंड सर अभी मैं सच में आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू कि आपने इतना जबरदस्त सुंदर लेक्चर दिया। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप रुके नहीं, यही इच्छा थी कि बहुत ही जैसे नागर रेड्डी सर ने कहा, इट वाज लाइक अ वाटर कैस्केड, फ्री फ्लोइंग एंड सो इंफॉर्मेटिव एंड इंसाइटफुल सर। बहुत ही बढ़िया था सर, एंड आपने वक्त निकाला। आप हमारे यहाँ आज लेक्चर के लिए वृषाली महेंद्र मैडम, अभिलाषा मैडम, नागर रेड्डी सर एंड शाहजहां शेख सर भी, सर थैंक यू सो मच। आप सबको दिल से हम वाडिया कॉलेज की तरफ से, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। एंड बहुत ही बढ़िया लगा सर। मतलब ये जैसे आपने कहा कि बूंद बूंद सागर बनता है, कि ऐसे स्मॉल एफर्ट्स के थ्रू ही हम we can come together as a community and a collective to do something for our society. And डेट आज के प्रोग्राम के लिए रखते जैसे आज का डे हो गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो इट इज समथिंग, इज अ बिग कोइंसिडेंस एंड बहुत ही अच्छा। एक पर्सनल चीज ये भी कहना चाहूंगी कि मैं खुद ऐसे कुछ रिसर्च करती रहती हूँ, तो डेक्कन कॉलेज से मेरा एसोसिएशन है, एंड मैं आई डू अ काइंड ऑफ थिंग ऑन फिलेटेली एंड आर्कियोलॉजी, या स्टैम्प्स में हम कहाँ हेरिटेज को ढूंढ सकते हैं थ्रू आर्कियोलॉजी एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो उस समय आपने सर वॉल्टर स्प्रिंग्स का नाम लिया, तो उन्होंने मेरा वर्क का काफी उस समय एक कॉन्फ्रेंस था, तो ही हैड commented this and congratulated for this work that I was doing. So this is small little thing that we as individuals also can do. तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी would like to say that every little step counts. So that way, and sir, on behalf of our Wadia College, I also thank our principal, Dr. P.K. Badane, जो हमेशा हमें encourage करते रहते हैं, and our head of the department, Dr. Jyoti Anirudh, she is a wonderful individual who I have met, and हमारी association बहुत सालों से है, and आगे भी रहेगी। और हमारे students का तो मैं क्या कहूँ, they are wonderful, and मतलब wonderful क्यों sir, क्योंकि everyone who is here matters। मतलब वो एक भी स्टूडेंट रहेगा ना, तो हम लोग लेक्चर लेते हैं, ऐसी बात है कि फॉर अस वी फील कि दे शुड एनी स्मॉल चाइल्ड आल्सो कैन हेल्प अ लॉट। तो ये सब कह के आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द टाइम एंड एफर्ट दैट यू हैव पुट इन, एंड थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी सर। थैंक यू। Yes, thank you madam. Thanks a lot. Thank you sir. Thank you sir. Bye. Thank you everyone. Thank you so much. It was a very good Thank you ma'am. Thank you sir, it was so good. Thank you sir so much. Thank you sir. Thank you. Thank you sir, have a nice day ma'am.